visible? Thank you. Good evening, everyone. I would like to welcome each and every one of you to the Views Exchange GST returns, issues and remedies session. Today being the 21st of September 2024. I would like to extend my warm regards to the respected fellow speakers, Shubham Khaitan ji as well as Sakshi Hajaria ji for their wonderful sessions before me. I would like to extend my warm regard and heartfelt gratitude to the board members at Views Exchange, C.A. Gedai Lal ji as well as Naveen Singhal ji, and to all the participants who have taken out time from their busy schedule, considering today this is the month of September, and we enrich ourselves in getting to know about these wonderful topics today. My topic for the day is to talk about the recent developments in GST. So in fact, there are so many developments in the past 2 months, so it is difficult to encapsulate all of those in this 30-40 minutes 1 hour session. But we've tried to put in as many recent developments regarding the 54th GST Council meeting, the 53rd GST Council meeting, and the Finance Act 2024, right? And we tried to interlink that. So let us start off. So these are the clauses, in fact, which were presented in the Finance Bill 2024. Now, clause from 110 to 152, it has become an act. But then, what I want to mention is that these clauses or these particular provisions of the Finance Act 2024, they have not been notified apart from a few. In fact, to name 128A, that has been notified, but from a prospective date from the 1st of November 2024. What I mean to say is that all the amendments which have been proposed or which have become a part of the Act, Finance Act 2024, it has not come into legal effect now, because it has not been notified yet. The Finance Act has been notified. It has been passed by the President of India on the 16th of August. It has become an act. But provisions related to the GST, apart from one which I can recall, that is your amnesty scheme, which we are going to discuss, Section 128A. That too, it has been notified from effect from the 1st of November 2024. Apart from that particular section, all the other sections or all the other amendments which have been proposed or which have become a part of the Act, they have not been put to legal effect now. But in respect of several such changes, circulars have come up to explain further, which we are going to discuss. Now first let us discuss about the Samadhan scheme, which is the GST amnesty scheme. Most of it, in fact all of us, we know about this. Let us just create a brief background about this. If you can see, financial years 17, 18, 18, 19, 19, 20. The last date to issue an order under section 73, which is section 73 subsection 9, the order which is non-fraud cases. That was the last date was 31st of August 2024, which is passed. Now, what I mean to say is that the government now GSTAT is being formed. That we know that the Goods and Service Tax Tribunal, now that will be formed in the next 2 to 3 months. Now, where are we currently in respect to 17-18? In respect to demand orders, they have been issued. When was the last day? 31st of December 2023. As we all know, we can file an appeal within 3 months under section 107 from the date of the order or the receipt of the order. For 17-18, the last date to file an appeal under 107 to the first appellate authority was your 31st of March 2024, plus 1 more month for condonation, for prayer of condonation, that is under section 107 subsection 4 with the mercy plea or to the commissioner, that ended on 30th of April for 17-18. So 17-18 के cases में अभी कहाँ पर हैं? Either the appeal orders have been passed or it is in the process right now. Appeal order अगर adverse pass हो गया तो क्या है? What is the next step? We are going to go to GSTAT or we go for the GST amnesty scheme, Samadhan scheme, विवाद से विश्वास, whatever you call it. That is section 128A. ये क्यों लाया गया है? इसका लाने का ये मतलब है कि 1 लाख से ज्यादा केसेस तो भी पेंडिंग ही है, that too only in respect of your appeal orders. अगर 3 साल भी लगातार काम करें GSTAT day in day out, तभी भी ये खत्म नहीं होने वाला. So that's why they want the assessees to reduce the litigation first of all. Second of all, in those cases where the interest and the penalty is more than the tax amount. अभी तो I'll show you certain notices which we received in the orders where the interest amount and penalty amount together is 70% of the total demand. And my CA or lawyer, they say that sir इतना merit नहीं है केस में, कि छोड़ रहे नहीं है अभी litigation क्या करना है? Take the amnesty scheme. क्या है amnesty scheme? Pay 100% of tax mentioned in the order. कौन सा order? Appeal order. कौन सा order? Demand order. कौन सा? Show cause notice. Show cause notice तो कुछ बचा नहीं है अभी, because सब तो order बन गया. मैं अभी दिखा रहा हूँ जो order भी फिर further appeal कर, we have appealed and they have come out to be adverse appeal orders.
So 17-18 के अपील ऑर्डर्स निकल गए हैं कि निकलने वाले. 18-19 the last date for your issue of the order under section 73 non-fraud cases by the department. That was 30th of April 2024. 3 महीना और जोड़िए 107 अपील के लिए. तो कहां तक पहुंचता है ये? 30th of August. अप्रैल है ना, मई जून जुलाई, 30th of जुलाई, 31st of जुलाई. एक महीना और जोड़िए मर्सी प्लिया के लिए, वो अपना अगस्त निकल गया अपना वो. तो ये केसेस में भी क्या हो रहा है सर? अपील फाइल कर चुके हैं, नहीं किए तो और कर नहीं सकते हैं. एंड पर्सनल हियरिंग्स आर बीइंग मेड. तो अभी 4-5 महीना का लैग चल रहा है सब जगह. तो 17-18 के केसेस हो गए, 18-19 के केसेस अभी सुने जा रही है. But in most probability 17-18, 18-19 adverse appeal orders we have received as taxpayers. Now come to 19-20. 19-20 का सर अभी 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले गया. Last date to issue an order. भर के orders निकले अभी 19-20 के. We are in the process of filing appeal. अब बोलने का मतलब क्या है सर? Today we are standing 17-18, 18-19, 19-20 ढेरों सार ऑर्डर्स के साथ में, या तो डिमांड ऑर्डर एट द एजुडिकेशन लेवल, या तो अपील ऑर्डर एट द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, सीनियर जॉइंट कमिश्नर, एनीवन. अब जैसे एज आई टोल्ड यू अबाउट द जीस्टैट, ये स्कीम है अपना. अब जीस्टैट के पास में अगर सब केसेस जाए, जो बने ही नहीं अभी, तो बहुत समय लग जाएगा. तो दे वांट टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी वेयरइन यू अवेल दिस एमनेस्टी स्कीम, and after availing the amnesty scheme, what will happen? They are going to notify, or they are going to notify a particular section 164. ये देखिए, ये नए चेंजेस आए हैं 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के. ये अभी आए 2 हफ्ते पहले. सॉरी, रूल 164 सेक्शन 128A. तो अभी जस्ट नए ये एकदम मतलब कि 2 हफ्ते पहले आए. क्या आया है इसमें? ये लेटेस्ट अमेंड, ये जो आपका 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अपडेट. लास्ट रूल विच हैज बीन नोटिफाइड इन जीएसटी लॉ इज सेक्शन रूल 163. अब 164 एक इंक्रीमेंटल रूल ला रही है. क्या ला रही है? इसमें मेंशन करेंगे प्रोसीजर क्या होगा. आज तो डीआरसी 03 में जाकर के पेमेंट, वी कैन नॉट मेक अ वॉलंटरी पेमेंट, राइट? डीआरसी 03 इज पेमेंट फॉर वॉलंटरी पेमेंट अंडर 73(5), 74(5). इट इज नॉट एज अ डिस्चार्ज मैकेनिज्म फॉर योर डिमांड ऑर्डर्स. दैट विल बी वो इनकरेक्ट हो जाएगा. आप वो पेमेंट कर देंगे, आप बोलेंगे सर मेरा तो लायबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर से कम ही नहीं हुआ है वो. फिर आपको जीएसटीआर 3A फाइल करना पड़ेगा टू अप्रोप्रिएट, जो अभी 3A निकला भी नहीं है बट विच हैज बीन अनाउंस्ड. वो सब अपने को झमेला में क्यों जाना है? तो लेट अस वेट फॉर रूल 164 टू बी नोटिफाइड, फॉर द सर्कुलर टू कम आउट. रूल्स, लॉज, प्रोसीजर, फॉर्म कुछ तो आएगा ना, उसके तहत पेमेंट करेंगे. अभी तो उठ करके पेमेंट नहीं कर सकते. सो प्लीज 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 स्टिल गो फॉर अपील, बिकॉज अपील बाद में विड्रॉ कर सकते हैं. अपील वी कैन विड्रॉ लेटर, लेकिन अपील का टाइम पीरियड चला जाएगा तो अपील नहीं कर पाएंगे. लेट अस एग्जॉस्ट अ लीगल रेमेडी. स्कीम तो आपका 1 नवंबर के बाद से आएगा, तो उसके बाद में इवन इफ यू फाइल्ड एन अपील, वी गो अहेड विद द अपील, बाद में विड्रॉ कर लेंगे. एडवर्स ऑर्डर भी आएगा तभी भी अपने वी कैन अवेल दिस एमनेस्टी स्कीम. देयर इज नो हार्म इन अप्लाइंग फॉर एन अपील, राइट? अब इसमें ये क्या बोले, ये अभी जो 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोले कि हम जो पहले आपको समझाए थे 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ऑन 22nd ऑफ जून, प्लस आपका सेक्शन 128A जो फाइनेंस एक्ट में मेंशन किए, उसके लिए फर्दर अपडेट दिए कि थोड़ा सा और पेशेंटली वेट करिए. हम लोग अर्जेंटली रूल 164 निकालेंगे, अर्जेंटली सर्कुलर निकालेंगे, अर्जेंटली फॉर्म्स निकालेंगे. अब इसमें क्या है? व्हाट इज देयर? वी नीड टू मेक पेमेंट ऑफ 100% ऑफ टैक्स. लेट अस सी दिस पर्टिकुलर नोटिस. ये देखिए, दिस इज एन ऑर्डर. दिस इज एन ऑर्डर ऑफ वन ऑफ आवर क्लाइंट्स ओनली, वेयर यू सी. ये कौन सा केस था? ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी वायलेशन वाला केस था. एनीवन कैन टेल मी व्हाट दैट केस इज? आई हैव मेड पेमेंट टू माय सप्लायर, आई हैव रिसीव्ड गुड्स, बट माय सप्लायर 9 to 11 हो गया, बंद कर दिया काम, और he has become unscrupulous. He is not filed his GSTR 3B return. He is not paid tax to the government. At the appellate, first appellate level here in Kolkata or anywhere in India, they are not allowing a favorable order in this respect, क्योंकि कोई clear cut उनके पास में notification कुछ भी चीज नहीं आया. Even though Suncraft Energy, which Supreme Court had upheld by the Calcutta High Court, passed on 14th of December 2023, वो सब कोर्ट करने के बाद में they are not letting. Now this is an order. अब इसमें the tax amount is 50,000, but you will see the interest amount is 48,000 plus penalty is 20,000. 1,18,000 का नोटिस में आपका 68,000 तो is the penalty and interest. और ये ऑर्डर का डेट देखिए कब का है, 20th of February. आज कब है? सितंबर में. तो इंटरेस्ट बढ़ेगा कि कम होएगा? Interest will keep increasing. So what I'm trying to say is, in those cases where we or our CAs, our lawyers, they say that sir, झमेला करने का दरकार नहीं है, let us make the payment under the amnesty scheme. So what are we going to do? We are going to make the payment of this 50,536, 100% of tax within 31st of March 2025. Suppose in this case, if the SSC doesn't file the appeal,
Then can you... Sir, SSC does not file the appeal within 3 months as per under section 78, which is the time allowed. 1 more month under section 107(4) mercy plea, that is exhausted जो अभी अपने discuss किए. After that, recovery proceedings begin under section 79. मतलब कि नीलामी, your bank accounts get attached, your debtors are asked to pay up, or there are certain whatever orders are passed, right? So why to go with that extent only? Now, अगर आपको मानिए GSTAT के लिए करना है, you want to file appeal, but GSTAT has not been formed, but you have to pay a pre-deposit of 10% extra. 10% पहले payment किए, again you make 10%. Then after doing that, then there will be stay proceedings on your recovery proceedings. कि okay fine, till the time the GSTAT is formed, and 3 months from the date when the president assumes the office, I have time to file an appeal. Until then, that there will be no recovery proceedings. No problem, but interest will keep adding. Interest will keep adding. Penalty नहीं बढ़ेगा. This is a 73 case. 74 case में तो sir, as we all know, right? First 100%. उसके बाद में there are certain मतलब कि advantages. Before the show cause notice 15%, after show cause notice within 30 days 25%, after order within 30 days it is 50%. We know that. But interest will keep increasing. What my point is here that to avail this particular amnesty scheme, we need to evaluate whether what is the merit of the particular case, right? amnesty में जाने के लिए appeal file होना जरूरी है सर अपील नहीं जरूरी नहीं है. आप अपील फाइल मत करिए, लेकिन 1 नवंबर तक, that's what I'm saying, उसके पहले अगर स्कीम आपका रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया एक्सेट्रा एंड ऑल दैट इज अ डिफरेंट केस. That's why I'm saying go for an appeal. जिससे कि आप प्री डिपॉजिट फाइल कर अपना पेमेंट करके यू फाइल अ पर्टिकुलर अपील सो दैट योर रिकवरी प्रोसीडिंग्स आर स्टॉप. देन एमनेस्टी स्कीम आपका 1 नवंबर से नोटिफाई हो गया, देन आफ्टर दैट यू अवेल दैट. Sir, SSC को आपका कहते हैं he has received the recovery proceeding notice also from the department. Now the SSC wrote a letter to the department that I will opt for this amnesty scheme and please stay this. नहीं होगा. क्यों मानेंगे सर आप? ये तो इन लोग कुछ ही नहीं मानते हैं. I will show you further. Section 16 subsection 5, section 16 subsection 6 आया. क्या है? जो आपका कुछ भी इनपुट अगर 16(4) का टाइम बार्ड में आप बाद में क्लेम किए उसका नोटिस आया है, वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है. 16(5), 16(6) ऑर्डर्स निकाल रहे हैं क्योंकि वो नोटिफाई नहीं हुआ, लीगल इफेक्ट ही नहीं लिया है. आप जो बोल रहे हो रिकवरी प्रोसीडिंग्स अपना वो कंटिन्यू करेंगे, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. यू कैन वो लोग कभी अभी तक रिकवरी किए नहीं है. आप लेटर लिख करके छोड़ दीजिए सर. You kindly write a letter and a plea to the commissioner that saying that sir kindly stay the recovery proceedings if your time limit for appeal has already become time barred. Or I would still say file an appeal. File an appeal even if it has become time barred. 3 months plus 1 month, still file it. Take the benefit of the Law of Limitation Act. Article 265, there are certain other things. File it nevertheless. I know it may not be admitted. Appeal APL 1 होता है provisional acknowledgement. APL 2 होता है when it is admitted. It may not be admitted, but you have paid the pre-deposit. If you have paid the pre-deposit, you have a ground that sir please section 79 invoke मत करिए. Amnesty scheme जैसे आपका आएगा, ये सब आएगा, उसके बाद में 10% जो पेमेंट की है appropriated against 100% tax, 90% पेमेंट कर दीजिए. And you may even be able to use your input tax credit there. आने दीजिए 164 है ये सब, but I am sure कि you will be able to use your input tax credit for payment of output tax. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट का सर्कुलर बोल रहा है. Notification 5 your 2022 dated 14th of July, 13th of July. It says that in respect of any output tax which is self-assessed or which is to be paid during any proceedings of the act, your input tax credit ledger can be used. RCM के टैक्स में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते हैं. लेट फीस और आपका इंटरेस्ट पेनल्टी यू कैन नॉट यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर, राइट. नाउ ये देखिए सर, जैसे अभी पूछ रहे थे कौन कौन से केसेस में सर हम कर सकते हैं एमनेस्टी स्कीम में जा सकते हैं. A70 10 कैन वी गो फॉर एमनेस्टी स्कीम. व्हाट इज A70 10? स्क्रूटनी नोटिस. अरे असेसमेंट हो रहा है, एडजुडिकेशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है. इट इज स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 61. सिर्फ A70 10 आया, बोलेंगे नहीं सर, हम उठ करके बोलेंगे एमनेस्टी जा रही है. वेयर इज द ऑर्डर? ऑर्डर कम्स अंडर सेक्शन 73. मतलब क्या है? स्क्रूटनी नोटिस A70 10, उसके बाद में रिप्लाई इन 30 डेज A70 11, फिर प्रोसीडिंग्स ड्रॉप नहीं हुआ इन A70 12, देन दे विल इशू अ DRC 01 और DRC 01A, बट यूजुअली नाउ वो डिस्क्रिशन हो गया तो दे आर इशूइंग DRC 01. When we don't reply or we reply unsatisfactorily, we don't pay, then within 30 days they issue order in DRC 07 summary order.
वो ऑर्डर को उठा करके जाइए आफ्टर 1st of November. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग. तो ये तो है ही नहीं, ये तो एडजुडिकेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ. ऑडिट पैरा इशूड, सेम थिंग, सेक्शन 65 डिपार्टमेंट ऑडिट, ADT2 ऑडिट ऑब्जर्वेशंस कम. वो ऑर्डर है क्या? वो तो बोलते हैं कि सर अभी पेमेंट कर दीजिए अंडर सेक्शन 74, 15% पेमेंट करके पेनल्टी करके खत्म कर दीजिए, तो आपको छोड़ेंगे नहीं हम. ऑडिट कमिश्नर उठा करके वो रेंज ऑफिस में क्या एडजुडिकेशन सेल में दे देते हैं, एंड देन दे विल इशू अंडर सेक्शन 74 99% केसेस. 73 तो है. वॉलंटरी पेमेंट फॉर एनी नोटिस नो. अब ये सब केसेस में व्हाट आई हैव सेड, कोई भी ऐसा स्थिति नहीं है जहां पर सिर्फ शो कॉज नोटिस इशू करके बैठा हुआ है आदमी. व्हाई? बिकॉज़ टाइमलाइंस ही निकल गया सर. दीस आर द टाइमलाइंस. शो कॉज का कहां है? इज ऑल तो ऑर्डर्स. ऑर्डर 31 दिसंबर 31 ऑर्डर निकल गया कंपलसरी. अभी कोई 17 18 18 19 में शो कॉज लेवल पे है ही नहीं, तो सब ऑर्डर निकल गया. सर वॉलंटरी पेमेंट अगर हम लोग कर देते हैं, वॉलंटरी हाँ बोलिए. वॉलंटरी पेमेंट एक्चुअली ना कुछ केसेस में ना ये करवा दिया था मैंने. एज मतलब जैसे ही आया था डिक्लेरेशन, उसके नेक्स्ट डे ही हमने करवा दिया था. तो उस केस में हम उसका डिक्लेरेशन शो कॉज नोटिस आया कि क्या आया? नहीं आया मतलब शो कॉज नोटिस आया ही नहीं है आपके पास. बट हमको पता था कि वेरी गुड क्वेश्चन. सर बोल रहे हैं कि सर शो कॉज नोटिस ही नहीं आया, तो एमनेस्टी स्कीम में हम रिफंड ले सकते हैं क्या? अभी तो एमनेस्टी स्कीम आ रहा है, मेरा टैक्स हम देंगे तो ये इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए थे 73(5) में. ये बोल रही इंटरेस्ट का रिफंड मिलेगा क्या? टैक्स का तो वैसे भी रिफंड मिलना ही नहीं है, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम में भी 100% टैक्स पेमेंट करना है. इंटरेस्ट, इनका क्वेश्चन है इंटरेस्ट का रिफंड ले सकते हैं क्या? पेनल्टी तो लगेगा नहीं 73(5) में, तो इंटरेस्ट का रिफंड नहीं मिलेगा. कोई भी पैसा गवर्नमेंट के पेट में डाल दिए है तो वापस निकालने में सर वो हाथ भी जाएगा, आपका कपड़ा भी जाएगा. दैट विल नॉट, यू विल नॉट गेट द रिफंड. इट इज मेंशन्ड इन दी पर्टिकुलर्स 128A only, in the act only. ये तो सारे लोग रिफंड मांग रहे हैं जो पहले दे दिया आज तक. ये इसमें भी इस इनफैक्ट ऑल दी एमनेस्टीज, इसके बाद में एक और एमनेस्टी का देखेंगे 16(5) 16(c). पैसे पहला पेमेंट कर दिया, बोनाफाइड है तो आपका गलती, आप बोनाफाइड क्यों हो? आप एमनेस्टी के लिए वेट नहीं किए. जिसको बेनिफिट मिल गया वो थोड़ी रिफंड देगा. तभी अभी निकाले एज इज वेयर इज. इन नया एक तो टर्मिनोलॉजी है इन लोग का, हर सेक्शन में एज इज वेयर इज, हर सर्कुलर में एज इज वेयर इज. ये हो गया आपका सेक्शन 11A, जो एम्पावरिंग सेक्शन अभी निकाले. 11A क्या हो गया? मतलब कि कोई भी स्थिति में अगर ट्रेड पार्लेंस है, जैसे आइसक्रीम 18% 5% का कंफ्यूजन चल रहा था, जब जॉब वर्किंग करते हैं, गेहूं से हम लोग आटा बनाते हैं, तो जॉब वर्कर का जो चार्जेस में जो ब्रांड का जो कॉस्ट आता है वो कोई नहीं डाल रहा था. स्टेट टैक्स, कितना सारा स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करते हैं, सेस पेमेंट करते हैं, वो सेक्शन 15 में वैल्यू में नहीं जाकर के जीएसटी पेमेंट नहीं हो रहा था. बट आई वाज नॉट डूइंग इट, माय एंटायर इंडस्ट्री वाज नॉट डूइंग इट. तो करोड़ों 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 का मतलब कि डिमांड होएगा, तो तब तो धंधा कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं सर ठीक है, आप जो गलती की है शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट, आई विल लीव इट, आई विल नॉट ओपन दोस केसेस. एज इज वेयर इज बेसिस. फ्रॉम टुडे यू हैव टू 18% में पेमेंट करना है. फ्रॉम टुडे वैल्यूएशन रूल में ये आएगा, फ्रॉम टुडे आपको ये फॉलो करना है. तो वो 11A आ गया, पर उसके पहले कोई एम्पावरिंग सेक्शन ही नहीं था. नाउ 11A हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द फाइनेंस एक्ट, बट इट हैज नॉट बीन नोटिफाइड yet. तो सब जगह as is where is, as is where is there. Will they allow the adjustment of the pre-deposit against the? Yes, yes, sir, we can do that. That is this one. I will show you towards the end. That is your Form 3A. Your DRC 3A has come out. Now it has not come out yet live on the portal. Now what is, sir has a very good question. I have made payment 40 lakh rupees during investigation. Behind closed doors, I was so scared. Investigation happened in 2018. INS 1 में search seizure हुआ. And my adjudication is happening now because the last date for issue of show cause notice under 74 for 17-18 was 6th of August. उसके बाद में show cause notice ही नहीं issue कर सकते because they have to come out with the order on 7th of February. तो अभी सब पहले का investigation 17-18 का भी जल्दी show cause notices issue कर रहे हैं. Sir का question है, if I have made voluntary payment or if I have made payment under coercion with voluntary payment or pre-deposit also for appeal. Now when the order is coming out, it is reflecting in my electronic liability ledger. Or my order has come out. Now I want to avail for amnesty. Now the amount which I paid earlier, 5 years ago, 4 years ago, or even as pre-deposit 3 months ago by filing appeal, whether that can be appropriated against the 100% tax payment under the amnesty scheme. Yes sir, you can do that. तो मतलब ही क्या है? पहले का पेमेंट करके रखी हुई और फर्दर 100% पेमेंट करेंगे. That is advance tax. There is no concept of advance tax in GST. Provisional assessment is there, but advance tax कुछ नहीं. So Form 3A has been brought sir for that. अब जैसे सर बोल रहे थे अभी voluntary payment बहुत सारे clients को हम करा दिए voluntary payment and all. Sir, many cases what has happened in for cases of pre-deposit,
I did not know. I have to go in, acha, appeal, click there, then there is a tab there, make the payment, then file the appeal. No, I went to DRC03, I selected voluntary payment and I made the payment of pre-deposit. Many people have done that. I did not know 1 year ago I did that. Now they are saying, now क्या हुआ, 3 महीना का टाइम निकल गया, जैसे सर अभी पूछते थे, सर 3 महीना का टाइम निकल गया तो क्या होएगा, उसके बाद में रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्टेड. सर सीधा डिपार्टमेंट में गए, सर अब क्या कर रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी मेड फाइल द अपील, आई हैव मेड द प्री डिपॉजिट. I can't see any pre-deposit of yours in appeal. You to filed in DRC03 voluntary payment. So I will continue with the recovery proceedings. तो सर पेमेंट भी कर दी है, फाइल भी कर दी है, सब चीज, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ. रिकवरी प्रोसीडिंग स्टिल स्टार्टेड. उसके लिए उन लोग बोले कि नो, वी आर कमिंग आउट विद सम फॉर्म 3A, जिससे कि पहले का कुछ भी वॉलंटरी पेमेंट और प्री डिपॉजिट दैट कैन बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट एनी फर्दर प्री डिपॉजिट व्हिच वी नीड टू मेक फॉर GStat और to set off against liability in electronic credit ledger. Both the purpose. पहले एडजस्टमेंट अलाउ ही नहीं था. पहले था ही नहीं सर. पोर्टल में तो अनेक प्रॉब्लम्स है. अभी इसको थोड़ा सा सुधार कर लिया. प्री डिपॉजिट GStat के लिए भी करना है. हम GStat के लिए अपील तो फाइल नहीं कर सकते हैं. कैन वी फाइल एन अपील? नो, बिकॉज उसका तो अभी तक प्रोसीजर ही नहीं आया है. बट हम 3 महीना में अगर प्री डिपॉजिट पेमेंट नहीं करते तो मेरा नीलामी कर देगा मेरे को. तो आई नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 10% मोर. पहले 10% किया था, अभी 10% मोर, लिमिटेड टू 20 crores ईच. उसका भी लिमिट चेंज हुआ है. पहले 50-50 था, अभी कम करके 20 crores कर दिया मैक्सिमम लिमिट. जो बोलने का मतलब क्या है, अपील फाइल नहीं की है, बट सर बोल रहे हैं आई हैव मेड द पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट. लेकिन सर प्री डिपॉजिट का पेमेंट का सर को आइडिया नहीं था, मेरे को भी आइडिया नहीं है. GStat के कहां पर करेंगे, GStat का तो आया ही नहीं है. मैं DRC03 से पेमेंट कर दिया. सर का जो क्वेश्चन है, दिखता 3 महीना के 2 महीना बाद में रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया. हम तो पेमेंट किए, स्टे प्रोसीडिंग्स डालिए, रिकवरी प्रोसीडिंग कैसे कर सकते हैं अंडर 79? फॉर दैट 3A हैज कम आउट. 3A में आप ARA नंबर डालिए DRC03 का जिसमें आप पेमेंट किए, उसको क्लिक करिए, आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा उसमें ऑटो पॉपुलेट. डिमांड ऑर्डर जो आपका आया है, अपीलेट ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में आपका ये अभी स्टार्ट हो गया, उसका ARN डालिए, रेफरेंस नंबर, क्लिक दैट. नीचे में अप्रोप्रिएशन का ऑप्शन रहेगा, अभी तक आया नहीं है लाइव, बट दे हैव सेट दिस. उसको क्लिक करेंगे, दोनों सेट ऑफ अप्रोप्रिएट. तो आपका जमा भी हो गया प्री डिपॉजिट उसके लिए, और लाइबिलिटी कुछ पहले पेमेंट भी किए थे वो भी उसके साथ में अप्रोप्रिएट हो गया. नोटिफाई नहीं है सर, ये फॉर्म है, ये फॉर्म अभी तक आया नहीं है, लेकिन बोल दिए कि आएगा. ये फर्दर मेरी प्रेजेंटेशन में आप लोगों को मिलेगा. तो वो समाधान से एडजस्ट हो जाएगा, समाधान में उनको एडजस्ट कर देंगे. हाँ सर, 3A में अभी समाधान का नहीं बोला गया है. 3A तो बोला प्री डिपॉजिट और डिमांड्स के लिए, लेकिन समाधान में तो सर आने तो दीजिए सर. यही तो चीज अभी बोल रहे हैं इन लोग. ये देखिए, यही तो चीज बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं एकदम अर्लीस्ट से अर्लीस्ट वी रेकमेंड टू नोटिफाई 128. ये तो नोटिफाई हो गया. अर्लीस्ट से अर्लीस्ट सर्कुलर इशू करेंगे, अर्लीस्ट से अर्लियर हम ये इंसर्शन ऑफ रूल 64 करेंगे, जिससे सबको पता तो चले करना क्या है. अभी तो सिर्फ हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, राइट. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? इसमें प्रॉब्लम है, ये देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक ऑर्डर आया 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, 1 करोड़ का टोटल, 1 करोड़ का 10 पॉइंट है. 25 लाख रुपया जो है मेरा 2 पॉइंट का बहुत मेरिट का है, 2A 3B का है. सप्लायर से मेरे को 193 का सर्कुलर मिल जाएगा, और वो अगला पेमेंट किया, एकदम क्लियर कट है. और मेरे को लेकिन 8 पॉइंट जो है ना, वो आपका ये 16(2)C का, फ्रॉड का, कुछ ऐसा पॉइंट है जो पेचीदार है, जो मेरे को कंटेस्ट नहीं करना, जो छोड़ेगा नहीं. एमनेस्टी स्कीम में कैन वी अवेल एन एमनेस्टी ऑफ 80 लाख. मतलब 8 पॉइंट के प्रति हम बोलेंगे सर हम पेमेंट कर देंगे 80 लाख, मेरे को 20 लाख रुपया हम कंटेस्ट करेंगे, अपील में जाएंगे. ऐसे पॉसिबल है? आपको क्या लगता है कभी ऐसा पॉसिबल करने देगा गवर्नमेंट? ये तो फॉर्म आ जाए, ठीक से हो जाए, वो बहुत बड़ा बात है. उसमें बोलेंगे एक ऑर्डर में आप आधा कंटेस्ट करेंगे, आधा आप अपील में जाएंगे, तो कौन ट्रैक करेगा, क्या होगा? मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है कि नो, आई विल नॉट गिव एमनेस्टी इशू वाइज, आई विल गिव यू एमनेस्टी ऑर्डर वाइज. लीव इट और टेक इट टोटल. एग्जैक्टली, ऑर्डर वाइज. मतलब कि आपका जो मेरिट पॉइंट भी है आपको स्वाहा करना पड़ेगा. 10 पॉइंट पूरा 1 करोड़ रुपया पेमेंट करिए, जिससे कि 70 लाख का आपको राहत मिले इंटरेस्ट और पेनल्टी का. लेकिन 20 लाख रुपया पॉकेट से चला गया, और उसके ऊपर में 15 लाख का आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी, 35 लाख रुपया स्वाहा करना पड़ेगा रिमेनिंग 60 लाख रुपीस बचाने के लिए. तो ये आपका मतलब कि यू हैव टू डिसाइड दैट. आपका इसमें क्या क्या कवर्ड नहीं है सर? 74 के नोटिसेस कवर्ड नहीं है, लेकिन 74 का कैन एनीवन टेल मी 73 में कन्वर्ट हो सकता है सर? Yes, it can be converted by the order. If it is proved that there is no fraud and mistake. वेरी गुड सर. ये वाला पॉइंट देखिए सर, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
ऐसे ही बोल देता हूँ। सेक्शन 75 सबसेक्शन 282 है जहाँ पर 14 में आपके पेज 14 में क्या बात है। आप बताइएगा मेरे को यहाँ पर कहाँ पर मैं डाला हूँ, ग्रीन रंग का जो था ना पूरा पेज नंबर ही नहीं दिख रहा मेरे को। ग्रीन रंग का जहाँ पर आपका केसेस कवर्ड और नॉट, उसी का लास्ट लाइन ये वाला लास्ट लाइन है। हाँ ये सर एकदम सही पकड़े, ये वाला देखिए। इसमें क्या है, 74 का नोटिस दे दिया, ऑर्डर दिया। अब तो नोटिस का टाइम खत्म, ऑर्डर दे दिए। अब बोलेगे सर 74 है क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। तो 74 के में आपको क्या है, यू विल स्टिल कंटेस्ट, यू विल से अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 2 एक प्रावधान है कि आप प्रूफ करेंगे ना सर। ऐसे तो हर ऑडिट के बाद में डिपार्टमेंट ऑडिट होता है, बोलते हैं कि आप तो चोरी की है। चोरी क्यों की, एक पैराग्राफ साइक्लोस्टाइल पेश कर देते हैं। इफ वी वुड नॉट हैव कंडक्टेड द ऑडिट दिस वुड हैव नॉट बीन डिटेक्टेड, सो दिस इज अ केस ऑफ क्लियर कट सप्रेशन। सर सप्रेशन क्या होता है, विलफुल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड तो सभी को पता है, फेक इनवॉइसिंग है, सर्कुलर ट्रेडिंग, वो सब है। सप्रेशन क्या होता है, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब कि बुक्स में भी मेंशन नहीं किए, 9 में भी मेंशन नहीं किए, 3B1 में भी मेंशन नहीं किए आप, और जब आप डिपार्टमेंट को कुछ भी दे रहे हैं उसमें भी आप मेंशन नहीं, मतलब यू हैव एक्टेड इन कंप्लीट डिफाइंस। तो देयर आर मेनी केस लॉज। रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन अगर हो तो वो केस में द डिपार्टमेंट कैन नॉट से इट इज अ फ्रॉड, मतलब बहुत सारे अनेक। मेरा बोलने का क्या मतलब है, डिपार्टमेंट 100 नोटिस में से 99 बोलता फ्रॉड है, वो 99 में से कम करके 50 नोटिस हम कर सकते हैं बाय फाइटिंग इट। फाइट करके बोलेंगे सर दिस इज अ फ्रॉड, नॉन फ्रॉड केस आप 73 में कर दो, ठीक है। वो 73 का शोकॉज नोटिस कर देता है तो ऑर्डर इशू कर देता है 73 में, देन आई कैन गो एंड आई कैन अवेल द एमनेस्टी। लेकिन ये सब होना पड़ेगा आपका 31 मार्च 2025 के पहले। अब सर सेकेंड एमनेस्टी ये वाला 16(5), 16(6), ये क्या बोलता है सर, 17, 18, 18, 19, 19, 20। फर्स्ट वाले एमनेस्टी में से 3 साल कवर्ड था, अब इसमें एक और साल ऐड कर दिया 20, 21। अब इसका मतलब क्या हुआ, इन ऑल दीज 4 years लेट अस सी दिस नोटिस। अनेक क्लाइंट्स लोग को मिला है सर ये नोटिस देखिए, सिर्फ ये 2 पैराग्राफ देखिए ना समझ में आ जाएगा। ये आपका कब का है, आपका ये 19-20 का है। 19-20 का ड्यू डेट कब था, लास्ट डेट, और क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 1920, दैट वाज 20th of October 2020। अरे उस टाइम था ना ड्यू डेट ऑफ सितंबर जीएसटीआर 3B रिटर्न ऑफ द सक्सीडिंग ईयर, वो ड्यू डेट 20 नहीं होकर के एक्सटेंड करके 24 कर दिया, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है अपने को, सर मेरा क्लाइंट है 4 दिसंबर को फाइल किया, अरे उस टाइम प्रॉब्लम था, कैश नहीं था उस टाइम, तबीयत खराब हो गया था, दे फाइल 2 months later, ये दे फाइल 2 months later। सी क्लियर कट सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का वायलेशन। द लास्ट डेट टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर 1920 वाज द ड्यू डेट ऑफ सितंबर 3B रिटर्न ऑफ 20, वो आपका 24 अक्टूबर बनता है, ये कब किए, दिसंबर में किए, तो सीधा उठा करके 6-7 लाख रुपया बोले कि आपका इनएलिजिबल इनएडमिसिबल क्रेडिट है, कुछ नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी केस लॉज उसे फाइट के, कोई एक केस नहीं छोड़ा पूरे इंडिया में। अभी वो बोले कि सर इतना सारा केसेस आ गया है, सो वी वांट टू गिव यू सर्टेन रिलीफ, ये ऑर्डर निकाल दिए। एंड दिस एन ऑर्डर ऑफ 2 to 3 weeks अगो। ये तो सब अनाउंसमेंट हो गया था, ये कब अनाउंसमेंट हुआ था ये सब, सर कैन एनीवन टेल मी, 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग दैट हैपेंड ऑन 22nd of June। सर अभी आप मेरे से पूछे थे कि सर रिकवरी प्रोसीडिंग्स करेंगे क्या, एमनेस्टी आएगा, जो सर छोड़ते हैं क्या, ये तो 22 जून को अनाउंस हो गया था कि राहत मिलेगा। ऑफिसर आंख बंद करके बोले कि क्या बोले ऑर्डर में, दिस हैज नॉट बीन नोटिफाइड येट। व्हाट हैज नॉट बीन नोटिफाइड येट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 5, वो नोटिफाई नहीं हुआ है, तो कोई लीगल इफेक्ट नहीं, हम सुने कहीं से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल इशू द ऑर्डर because the last date of issuing of order of 1920 under 79 was 31st of August। तो उनको तो करना है ना काम अपना, तो 19th August का इशू कर दिया अपना। What do we have to do sir, how do we contest this? तो रियल केसेस है इसमें बोलते हैं सर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 ये चारों साल के इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप कोई भी जीएसटीआर 3B रिटर्न में क्लेम कर लेते हैं और वो 3B रिटर्न आपका 30th नवंबर 2021 के अंदर में आप अगर क्लेम कर लेते 3B में, नो क्वेश्चंस आज सब मिल जाएगा। एग्जांपल लेता हूं, 17-18 का लास्ट डेट कब था इनपुट क्लेम करने का, एक्सटेंडेड 23rd अप्रैल 2019, एक्सटेंड हो गया था ना, 6 महीने एक्सटेंड हो गया था, मतलब मार्च 2019 रिटर्न। कायदा से सर क्या होता है, 17-18 का 18-19 तक अपने अक्टूबर तक क्लेम कर सकते हैं, 18-19 का लास्ट कब क्लेम कर सकते हैं, 20 अक्टूबर 19, ऐसे कर करके था अपना। मैं मानिए 17-18 का क्लेम करता हूं 20-21 में, ये तो इलीगल का इलीगल है, मतलब 3 बुक्स क्लोज हो गया, 3 साल खत्म हो गया, उसका बिल उठा करके मैं 20-21 में बुक्स में डाल करके आई क्लेम दैट, तो एब्सोल्युटली इलीगल, लेकिन वो लीगलाइज हो गया। 17-18 का इनवॉइस
अगर आप पहले क्या होता था अनऑफिशियली 17-18 का 2A में कुछ पॉपुलेटर होता नहीं था, वो अमाउंट को नेक्स्ट ईयर का दिखा देते थे कि नेक्स्ट ईयर में वो पिछले साल का क्लेम हुआ है और उतना ही शॉर्टफॉल का दिखा देते कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में क्लेम हुआ है। एग्जैक्टली FIFO बेसिस वैसे करते थे अनऑफिशियली, बट अभी क्या हो गया उसे सब लीगलाइज कर दिया। मैं नहीं, जीएसटी काउंसिल भी कौन से लीगलाइज किया कि आप जो ये सब जो आगे एक एक साल 2-2 साल आप जो आगे बढ़े सब लीगल हो गया, प्रोवाइडेड यू हैव क्लेम्ड इट इन 3B रिटर्न, प्रोवाइडेड यू हैव फाइल्ड द 3B रिटर्न व्हेन 30 नवंबर 2021, मतलब 17-18 का भूल से भी करूं तो 18-19, भूल से भी करी तो 19-20, भूल से भी करी तो 20-21, 20-21 का 30 नवंबर। बट इसमें भी कैच है। व्हाट इज द कैच? सर मेरा टैक्स ऑडिट हो रहा है, मानिए 18-19 का एग्जांपल लेते हैं, टैक्स ऑडिट हो रहा है। टैक्स ऑडिट कब होता है सर? मंथ ऑफ अगस्त सितंबर में, 30 सितंबर लास्ट डेट है। सर कोई कारण से मेरा 3B भी सब मैं फाइल कर दिया, टैक्स ऑडिट हुआ मेरा फॉर एग्जांपल 1 महीना लेट, कोई भी कारण से अक्टूबर में हो रहा है, आई हैव ऑलरेडी फाइल्ड द सितंबर GSTR 3B रिटर्न ऑफ 18-19, 20 अक्टूबर निकल गया 2019 का, तो कोई भी इनपुट अबाउट क्लेम नहीं कर सकते। टैक्स ऑडिट में पकड़ में आया सर 1 लाख रुपए का, तो आप इनपुट ही क्लेम नहीं किए, तो बोलेंगे ऐसा अच्छा बुक्स में है, हाँ बुक्स में है ठीक है, 3B में क्लेम नहीं किया, 9 में क्लेम कर देते हैं, कर सकते हैं ना। 9 में GSTR टेबल 9 में GSTR 9 का टेबल 6 है, जो ऊपर में 3B का ऑटो पॉपुलेट होता है 6A में, फिर उसको इनपुट सर्विस कैपिटल कुछ में ब्रेक करते हैं एंड ऑल दैट, वी डू दैट। इलीगल, उस टाइम भी इलीगल, अभी भी इलीगल। इफ यू हैव क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट इन 3B but only in books or in 9 or in books and 9 but not in 3B, input नहीं मिलेगा। 9 में क्लेम करने पे ऐसे ही पॉपुलेट कहते हो जाएगा ही, आएगा ही नहीं, एग्जैक्टली। तो 9 में क्लेम ही नहीं कर सकते, तो इलीगल सर। लेकिन काफी इलीगल चीज यहाँ पर लीगलाइज हो गया है, मैं क्या लीगलाइज नहीं हुआ वो बता रहा हूँ। 9 में क्लेम करके बैठ गया जो बुक्स में था, बहुत अपने उस टाइम किए थे ना, 3B रिटर्न नहीं होता है, 3 होता है रिटर्न, गुजरात हाई कोर्ट का बाद में आया, बुक्स में क्लेम कर दी है तो 16(4) का इतने सारे केस लॉज है, वो सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो सब नथिंग विल होल्ड। अब इसमें सर ये सब तो ठीक है, ये समझ लिया, लेकिन आगे क्या है? ये जो नोटिस आया, ऑर्डर आया है, जो इसको कैसे कंटेस्ट करे? अपील में जाए क्या? नो सर, डोंट गो फॉर अपील इफ यू नॉट गॉन फॉर अपील। इसमें क्या बोलते हैं, सेक्शन 148 बोल करके एक तो सेक्शन होता है, यहाँ पर पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम कोई सर्टेन कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए कुछ मतलब कि संशोधन, चेंजेस या कुछ भी हम रेकमेंड कर सकते हैं एज ए स्पेशल प्रोसीजर, कोई भी रिटर्न के तहत, कोई भी ऑर्डर के तहत एक्सेट्रा। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक बार ये नोटिफाई होने दीजिए, सर्कुलर आने दीजिए, नोटिफिकेशन आने दीजिए फॉर सेक्शन 16 सबसेक्शन 5, ये एक्ट का पार्ट है। आप TMI में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, एक्ट का पार्ट है, विद इफेक्ट फ्रॉम डॉट 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 डॉट। लीगल इफेक्ट नहीं है अभी। जब ऑर्डर कोई नहीं रोक पाया तो क्या लीगल इफेक्ट? ऑर्डर ही दिखा दिया अभी तो 20 दिन पहले का, क्या लीगल? कुछ लीगल इफेक्ट नहीं है अभी। So after the legal effect comes, then what will you do? Please go to your commissionerate and say कि sir, under section 148 with the particular notification and the rules, please rectify the order and put aside the demand. Clear cut case. वो rectify करेंगे, they will cancel the demand, और उसके बाद में आपका वो डिमांड हट जाएगा। This is one procedure. Second, if you have filed an appeal, जैसे सर पूछे कि सर अपील हम फाइल कर दिए, what will I do? सर 161 में जा सकते हैं। सर 161 आपका रेक्टिफिकेशन का है, बट वो इसमें वो रेक्टिफिकेशन नहीं है। वो 161 तो ऐसे रेक्टिफिकेशन के है, बट दैट इज एरर्स ऑन अपैरेंट ऑन रिकॉर्ड ऐसे करके, अपैरेंट नहीं है तो लाना पड़ा, अपैरेंट होता तो यहाँ तक आता ही नहीं सर। और 161 में भी बहुत कहानी है अलग, क्या अपैरेंट है क्या नहीं है, कितना टाइम लेंगे एक्सेट्रा, ये क्लियर कट मेंशन कर दिया कि भाई 148 के अंदर में जाइए, रेंज ऑफिस में बोलिए कि सर रेक्टिफाई कर लीजिए। इफ यू फाइल्ड एन अपील, व्हाट विल हैपन? इफ यू फाइल्ड एन अपील, प्लीज प्लीड टू योर अपीलेट अथॉरिटी आफ्टर इट गेट्स नोटिफाइड कि सर ड्रॉप कर दीजिए। अच्छा, ये केस भी एमनेस्टी दोनों जुड़ा हुआ है। 10 पॉइंट में बोला ना एक ऑर्डर में, उसमें से एक पॉइंट तो ये है, तो डायरेक्ट एमनेस्टी में जाकर के इसका भी पेमेंट कर दे। क्यों पेमेंट करेंगे, इसका तो राहत मिल गया है। So what will I do if I got an order? I will wait for it to be notified. What? Section 16 subsection 5. तब जाकर के मैं जाऊंगा रेंज ऑफिस में, प्लीज रिमूव दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट, दे विल गिव यू द रेक्टिफाइड ऑर्डर। 9 पॉइंट्स में जाकर के एमनेस्टी स्कीम में जाएंगे। लॉजिक कि 10 पॉइंट में जाकर के पेमेंट कर देंगे? नो। व्हाट इज सेक्शन 16 सबसेक्शन 5? ये 16(6)(5) तो समझ लिए, ये 6 क्या है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 6। ये भी केसेस काफी बहुत इरिटेटिंग केस है, ये हम लोग के हाथ में नहीं है, ये तो मैं स्क्रूटनी नोटिस का वो अटैचमेंट डाला हूं इसमें। मेरा सप्लायर जो सितंबर GSTR 1 में
मानिए फॉर एग्जांपल 1920 का कोई सेल इनवॉइस ऑफ अ सप्लायर, ही हैज नॉट अपलोडेड इन जीएसटीआर 1 अप टू व्हेन सितंबर ड्यू डेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो आपका जीएसटीआर 2A विल नॉट ऑटो पॉपुलेट विद दैट पर्टिकुलर इनवॉइस, क्योंकि आपका सप्लायर का गलती है, वो सो रहा था सितंबर का अपना जीएसटीआर 1 3B नहीं 1 वो फाइल करता है दिसंबर में, तो आपका वो साल का तो 8A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ, 8A में नहीं आया तो बस सब उन लोग बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं, मिसमैच ऑफ 8A एंड 3A। तो ये सब केसेस है, दिस इज फ्रॉम अ रियल स्क्रूटनी नोटिस, all these cases will be dropped. Why? Because you as a recipient, you have claimed that input in your 3B, and that 3B has been filed before 30th of November 2021. Does not matter if your supplier has delayed uploading the invoice or not uploaded the invoice at all. ये भी केस जो अपना कवर्ड है इसमें। अच्छा, सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 क्या है सर? ये वाला, ये एग्जांपल ही देख लीजिए ना। ये केस में क्या है सर? अगस्त 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक 6 महीना 3B फाइल नहीं किए, तो क्या होता है सर? सुओ मोटो कैंसिलेशन मींस द डिपार्टमेंट विल टेक कॉग्निजेंस कि 6 महीना 3B फाइल ही नहीं किया, तो आई विल कैंसिल दिस अंडर सेक्शन 29 रूल 21, राइट? अब वो कैंसिलेशन का मैं रिट तक चला गया एंड माय कैंसिलेशन गॉट रिवोक्ड ऑन 31st of December 2024। मतलब क्या हो गया सर? 23-24 का लास्ट डेट, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2023-24 का लास्ट डेट इनपुट क्लेमिंग का कब था? 30th नवंबर 2023। अरे मेरा ऑर्डर क्या रिवोक ही हुआ दिसंबर 2024 में, एक महीना बाद में। तो जब तक रिवोक नहीं होता, कैन आई फाइल 3B1, कैन आई कंडक्ट माय बिजनेस? नो। तो पूरा इनपुट छूट गया मेरा, लेकिन बाद में मेरे को बाइज्जत बरी कर दिए। तो बाइज्जत बरी का मतलब क्या हुआ? अगर 1 करोड़ का इनपुट ही क्लेम नहीं कर पाऊंगा मैं पिछला साल का, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम था कि बाद में आपको बरी कर दिए हम, लेकिन आपके बीच का जो है टाइम वो आपको 30 नंबर से निकल गया। तो उसके लिए इन लोग क्या बोले कि सर ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप 31 दिसंबर 2024 में रेवोकेशन ऑर्डर आए हैं फॉर कैंसिलेशन, मतलब आप वापस से जीवित हो गए। तो 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेवोकेशन ऑर्डर प्लीज फाइल ऑल योर जीएसटीआर 3B रिटर्न्स फ्रॉम अगस्त 2023 टू जो भी नवंबर तक या जब तक का भी है, एंड यू कैन क्लेम दैट। यही चीज बोल रहे, ये भी अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। सर इंपोर्ट सर्विसेज, ये क्या है सर? इंपोर्ट सर्विसेज मुद्दा का बात है। मैं यहाँ पर, मेरा मानिए कि ब्रांच ऑफिस, जैसे मेरा ही ऑफिस समझ लीजिए, दुबई में, बहरीन में यहाँ पर ऑफिस करके रखिए, वहां से यहाँ पर मेरे को कोई भी सर्विस देती है, बैक ऑफिस, असिस्टेंस, कुछ भी सर्विस देते हैं। सर क्या हो गया? जीएसटी के तहत में क्या है? नो कंसिडरेशन, पैसा थोड़ी देंगे एक दूसरे को, तो मेरा भाई बंधु है, मैं खुद ही हूँ, मेरा दूसरा ऑफिस है, बट ही इज प्रोवाइडिंग मी सम सपोर्ट इंटरनेशनल टैक्सेशन में, कुछ भी चीज है, किसी और से लेता तो पैसा चार्ज करता। तो सर जीएसटी के तहत में इज इट अ सप्लाई? इट इज अ सप्लाई। शेड्यूल 1 में क्या बोलती है सर? शेड्यूल 1 में पॉइंट 2.4 में तो क्लियर कट बोलते हैं, कोई भी बाहर का पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है, इंपोर्ट और सर्विस मान लेंगे। इंपोर्ट और सर्विस जैसे आ गया तो नोटिफिकेशन 10/2017 आ गया, आरसीएम वाला आ गया सर। मतलब क्या आरसीएम क्या है? मतलब कि जो इंडिया में जो मेरा कंपनी है वो एक तो सेल्फ इनवॉइस क्रिएट करेगा और आरसीएम में पेमेंट करके क्लेम कर लेगा, ये तो चीज बोलता है ना। लेकिन क्या चीज पे? वो बोलेंगे नहीं ओपन मार्केट वैल्यू में जाइए। ओपन मार्केट मतलब ये ईवाई केपीएमजी में मैं जाऊंगा, अच्छा इंटरनेशनल टैक्सेशन का रिलेटेड ट्रांजैक्शन में 50 लाख रुपए हम चार्ज करते हैं, तो वो उठा करके मैं करूंगा, मेरा तो वर्किंग कैपिटल धंधा ही बंद हो जाएगा यहाँ पर सीएफएम का। 50 लाख पे 18% जेब से निकालू, पेमेंट करूं, पैसा ही नहीं होता पेमेंट करने का। तो उसके लिए क्या बोले है कि एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये ओवरसीज का बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर लेते हैं। एनी आपका जैसे कि यहाँ पर मेरा बंगाल में है, जैसे मेरा यहाँ पर चेन्नई में भी हो सकता है ऑफिस, हेड ऑफिस मेरा यहाँ पर है, ब्रांच ऑफिस चेन्नई में है, तो ब्रांच ऑफिस बच्चा है मेरा, मेरे से सपोर्ट चाहिए। तो बाद में जीएसटी डिपार्टमेंट आके बोलते हैं कि अच्छा आप उनको सर्विस दी है तो जीएसटी निकाल लिया। हम बोले सर हम तो इनवॉइस ही रेज नहीं किए, कंसिडरेशन ही चार्ज नहीं किए। नहीं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज C रेड विथ शेड्यूल 1 ऑफ पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 4 रेड विथ सेक्शन 15 वैल्यूएशन रूल, इसे सब गिना उनो करके प्लस रूल 28 जो अभी मैडम डिस्कस कर रही थी, वो सब ओपन मार्केट वैल्यू हम वहां से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। आपका मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख रुपया तो बनता ही है ट्रांजैक्शन, तो उसके ऊपर में आरसीएम आप पेमेंट नहीं किए, अभी पेमेंट करिए, इनपुट भी नहीं मिलेगा आपको सेल्फ इनवॉइस का जो अभी चेंज हो गया है, व्हिच वी विल डिस्कस राइट नाउ, और पेनल्टी इंटरेस्ट सब आप दीजिए। नहीं, देयर इज अ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या है? इफ देयर इज अ रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पार्टी, डिस्टिंक्ट पार्टी मतलब कि एक पैन अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जीएसटी है, वो डिस्टिंक्ट पार्टी। रिलेटेड पार्टी मतलब क्या हुआ? कंपनी है तो 20-25% से ज्यादा इक्विटी स्टेक है, और इफ समवन आई कैन कंट्रोल। रिलेटेड पार्टी ग्रुप कंपनी, उसमें अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन के लिए जो
हेड ऑफिस है कि जो सर्विस दे रहा है, ही कैन मेंशन एनी वैल्यू इन द इनवॉइस। 5 लाख का अगर एक्चुअल में है तो 5,000 भी चार्ज कर सकता हूं, और 5,000 चार्ज किया, फॉरवर्ड चार्ज में 18% लेकर के पेमेंट कर दिया। लेकिन बाहर का जहां तक पार्टी है सेम चीज कर सकते हैं, सेम प्रिंसिपल। बाहर का पार्टी मतलब क्या हुआ, आई एम इंपोर्टिंग सर्विस, मानते हैं इंपोर्ट कर रहा हूं मैं, बाहर का बड़ा होल्डिंग कंपनी है, यहाँ का छोटा सब्सिडरी कंपनी है, वो सर्विस दे रहा है, टेक्निकल सर्विस दे रहा है, एफटीएस सर्विस दे रहा है, कुछ भी सर्विस दे रहा है। तो बाहर का पार्टी के साथ में आई कैन डू टैक्स प्लानिंग एंड आई कैन से सर आपका 5 लाख का इनवॉइस होगा आर्म्स लेंथ में टू थर्ड पार्टी, बट आई विल इशू अ सेल्फ इनवॉइस ऑफ ओनली 5,000 रुपीज and I will pay RCM of only 18% on 5,000 rupees. And I will pay provided कि exactly coming to the main point, provided the recipient means recipient कौन है, जो Indian domestic related entity है जो सर्विस ले रहा है, he is eligible for full ITC 100% ITC। इसका मतलब क्या होगा, मैं अगर म्यूचुअल फंड्स बेचता हूँ कंपनी में, प्रपोजल फैमिली कंपनी में, मेरा प्रोप्राइटरशिप है, एक ही जीएसटी है, एक ही पैन है, उसमें म्यूचुअल फंड्स बेचता हूँ तो जीएसटी लगेगा उसमें। रूल 42, 43 है सर, रेड विद सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, उसमें क्या करना होगा, प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना होगा। प्रोपोर्शनेट रिवर्सल मतलब क्या हुआ, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड 10 रुपया डिवाइड बाय डोमेस्टिक सेल प्लस एग्जाम सेल प्लस एक्सपोर्ट सेल मिला करके 100 रुपया, तो 10% टोटल कॉमन आईटीसी। कॉमन आईटीसी का भी अलग परिभाषा है, ऐसे नहीं कि जितना आईटीसी है, सॉरी that is 1% of the value, but in other cases that in the notices also it comes that the common credit which you have to calculate and that particular you have to reverse. So in that particular case can it be said that you are eligible for 100% ITC? No. अब 100% ITC में eligible नहीं है, then क्या करना होगा, ओपन मार्केट वैल्यू की आपका जो वैल्यूएशन 30 है 31 है उसमें फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो प्लानिंग क्या कर सकते हैं सर, ये जो अभी सर्कुलर्स आए 210 199 की, इफ देयर इज एनी पार्टी रिलेटेड पार्टी आउटसाइड इंडिया, इफ ही इज गिविंग यू एनी सर्विस, यू कैन रेज अ सेल्फ इनवॉइस बिकॉज यू हैव टू पे आरसीएम। Even if you don't raise a self invoice, no problem. If you know you are eligible for 100% ITC, you're not selling electricity, you're not selling fruits, vegetables, you're not selling mutual funds, you're not selling any exempted items. So you are eligible for 100% input tax credit. So in that case, you can tax plan. अगर बाहर से कुछ भी सर्विस आ रहा है, आप सेल्फ इनवॉइस इशू भी मत करिए, नो प्रॉब्लम। अगर इंडिया में कोई सर्विस हो रहा है तो एक मिनिमल वैल्यू उसमें डाल दीजिए एंड देन चार्ज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, चार्ज जीएसटी। सो दिस इज रेड विद ऑल दीज सर्कुलर जो अभी हमने डिस्कस किए, सर्कुलर 199, सर्कुलर 210, ये 210 अभी 26 जून में आया था, 199 आया था 17 जुलाई 2023, रेड विद योर रूल 28, टेकिंग द बेनिफिट ऑफ सेकंड प्रोविजो। ये देखिए सेकंड प्रोविजो जो मैं मेंशन किया। अच्छा, लेटेस्ट 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर रिसर्च ग्रांट्स है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट बॉडीज है, गवर्नमेंट बॉडीज है, ग्रांट देते हैं भाई रिसर्च के लिए। अरे इनकम टैक्स में है ना 35(1) क्लॉज 2 है, 2A है, 3 है, वो सब क्या है, डिडक्शन के लिए है ना। बड़े बड़े उद्योगपति है कि फंड्स पड़ा हुआ है, 150% डिडक्शन चाहिए मेरे को, तो सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 में इन साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन में आप आते हैं, इफ यू रजिस्टर्ड योरसेल्फ एज पर द गाइडलाइंस इनकम टैक्स एक्ट में, तो आपको जो आदमी ये पर्टिकुलर ग्रांट दे रहा है उसको 150% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द ग्रांट उसको डिडक्शन मिल जाएगा। वही तो बात कर रही है, क्या बात कर रही है, एनी गवर्नमेंट बॉडी और एनी प्राइवेट बॉडी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, एनीथिंग प्राइवेट, इन केस इफ दे आर रजिस्टर्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च, फॉर सोशल साइंसेज रिसर्च, व्हाटएवर इट इज, अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3, उसके अगर सेंट्रल गजेट जो नोटिफिकेशन में नाम आता है, तो अगर उनको प्राइवेट ग्रांट दे रहे हैं, ग्रांट्स दे रहे हैं उसको, तो उस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। आप ग्रांट देते हो तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, आप ग्रांट देते हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस हैज बीन मेड टू बी एग्जेम्प्टेड। तो गलत है ना, ग्रांट दे रहे हो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज करेंगे तो बहुत गलत बात है। ये 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आया है। अच्छा, सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप, ये देखिए सर, ये बहुत गंदगी वाला चीज हुआ था 17, 18, 18, 19 में। ये हमारी क्लाइंट का सेक्शन 70 अभी का ही है, ये अभी इसका पर्सनल हियरिंग समन्स में करके आया था मैं, ये आपका ये मई का, ये क्या है, फेरस वेस्ट स्क्रैप्स में डील करते हैं। उस टाइम 17, 18, 18, 19 में क्या होता था सर, नाम लेते थे सप्लायर एक्स का, माल दे देते थे अपने पास में एग्रीगेटर, जो एग्रीगेटर होते हैं ना, फर्स्ट लेवल क्या होता है, L1 कौन है, एग्रीगेटर, जो बंगाल वाला है, जो अनरजिस्टर्ड आदमी है, सब पूरा कलेक्ट करता है,
वो बंगाल वाला जो है अनरजिस्टर्ड है, एग्रीगेटर है, वो बेचता है L2 को। L2 कौन सा है आदमी? रजिस्टर्ड आदमी है। L3 जो है वो भी रजिस्टर्ड आदमी है, ट्रेडिंग हो रहा है। L4 मैन्युफैक्चरर खरीदता है। अब वो एग्रीगेटर के वजह से वो ईवे बिल के अनरजिस्टर्ड पार्टी है, वो मतलब कि फेक बिलिंग करता है कि L1 जो L2 L3 दीस पीपल दे डू नॉट कंप्लाई विद जीएसटी, फेक इनवॉइस वे बिल नहीं जनरेट करते हैं और एनी रीजन दे डू नॉट इशू दे डू नॉट अपलोड द इनवॉइस इन GSTR1, 2A में नहीं आता है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक हु इज द एग्रीगेटर फर्स्ट, L1 L2 L3 फिर मैन्युफैक्चरर इन मेटल स्क्रैप इंडस्ट्री। ये पहले से बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, रेवेन्यू लीकेज बहुत हो रहा था। तो सबको पकड़ना है, दे वांट टू नो कि कौन कौन आदमी सेल किया है, कौन कौन सप्लाई चेन में है। यहां पर सप्लाई चेन में दिखाते हैं 10 आदमी है, निकलता 3 आदमी, राइट। तो इसमें क्या किए, जो अनरजिस्टर्ड पार्टी है उसको ट्रैक कैसे करें? उसका तो जीएसटी नंबर ही नहीं है, आरसीएम से ट्रैक कर सकते हैं। आरसीएम मतलब क्या हुआ, जो आदमी को बेच रहे हैं, मैं रजिस्टर्ड हूं ट्रेडर, मेरे को एग्रीगेटर बेच रहा है, तो गवर्नमेंट के पास में अब आ जाएगा कि एग्रीगेटर से हम खरीदे 2% आरसीएम, हम क्या कर रहे हैं, आई एम मेकिंग द पेमेंट, रजिस्टर्ड सप्लाई। तो पता है 2% आरसीएम तो 100% कितना माल एग्रीगेटर से खरीदे, ये ट्रैकिंग हो गया। मैं रजिस्टर्ड हूं, सेकंड L2 L3 जो है वो भी रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड B2 B सेल कर रहा है, तो जो आदमी मेरे को पेमेंट करेगा रजिस्टर्ड, वो क्या करेगा और ट्रैक करना है। तो आरसीएम तो हो ही नहीं सकता ना, 2 रजिस्टर्ड है, तो क्या कर ले, टीडीएस डाल दिए उसमें, टीडीएस 2%। सबको पता है टीडीएस अपना सेक्शन 51 ये सब में अपना है क्या, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपया के ऊपर का अगर टैक्सेबल वैल्यू हो तो 1% CGST SGST है तो 2%। कब पेमेंट, जब पेमेंट करते हैं तब काटते हैं। तो ये जाकर के GSTR 7 अगला गवर्नमेंट को फाइल करना पड़ता है 10 तारीख के अंदर, अगला महीना का आपको। उसके बाद में विद इन 5 डेज 7A का एक सर्टिफिकेट आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं वहां पर जाकर के। तो एक्सेप्ट करना होता है, हम लोग को भी जाकर के एक्सेप्ट डिनाई, एक्सेप्ट करेंगे यस कि ये मेरा TDS है, क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब ये नहीं कैश क्रेडिट, कैश लेजर में आता है, ये ITC लेजर में नहीं आता। लेकिन अभी तक दिस हैज बीन ओनली बिन गवर्नमेंट को और मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए, लेकिन इसमें डाल दिए। अब क्या होगा, ट्रैकिंग होगा। वो ट्रैकिंग क्या था कि गवर्नमेंट से फालतू का पैसा नहीं जाए, करप्शन नहीं हो, गवर्नमेंट जितना भी पैसा दे रहा है, कौन पैसा दे रहा है, कब काट रहा है, वो पूरा ट्रैक है। तो इसमें ट्रैक हो गया ना, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। ये सब नोटिसेस जो है, ये सब देखिए 27-28 लाख के नोटिसेस है। ये क्या है, बोलते हैं कि माल ही नहीं मिला है, दिस इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज B। वो बोलते हैं कि सप्लायर का छापा मारे वहां पर, सप्लायर दिल्ली में था, सप्लायर का अस्तित्व ही नहीं है। तो जो अस्तित्व ही नहीं है तो माल आ कैसे सकता है आपके पास में? अरे माल मेरे पास आया है, कंसाइनमेंट नोट है, वे बिल है, सब चीज है, लेकिन वो मानते नहीं है, बोलते कि नहीं वो तो एग्जिस्टेंट ही नहीं है, ये रियल लाइफ केसेस है। ये तो सिर्फ 20-30 है, 4 इनवॉइस का 40 इनवॉइस होकर के 25 करोड़ हो जाता है। तो दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। तो अब ये सब ट्रैकिंग जो व्हिच आई टोल्ड यू, ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। सर ये 2% जो है, 2% CGST 2% नहीं सर, 1% तो 4% हो जाएगा। They have kept parity with that 2% है, लेकिन TDS of 2% will be applicable। 1% है सर, वो 2% कहाँ से नहीं होगा। अच्छा कंपोज, हाँ मेटल स्क्रैप इंक्लूड्स फेरस एंड नॉन फेरस बोथ। देखिए इसमें मेटल स्क्रैप बोले है, ये वाला आप अगर आप नोटिस देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो अपना आदमी है, जो क्लाइंट है, फेरस वेस्ट एंड स्क्रैप, ये आपका HSN कोड है। तो वो HSN कोड के हिसाब से करेंगे। फेरस में अभी 72 आपका स्क्रैप का है, उसके अंदर फेरस हो, आयरन वेस्ट हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी हो, वैसे करके। तो उसमें ये नहीं बोलिए मेटल स्क्रैप बोलिए, फेरस वेस्ट मेटल स्क्रैप ऐसे नहीं बोलिए, लेकिन हाँ बोलिए नॉन फेरस भी मतलब मेरे हिसाब से इंक्लूड तो होना ही चाहिए। स्क्रैप है, मेटल स्क्रैप है तो मेटल स्क्रैप में आना ही चाहिए, बट वो उनका जब सर्कुलर आएगा उसमें वो मेंशन करेंगे ये HSN में जो डील करते हैं उसके ऊपर में ये सब चीज लगेगा। तो बैंक भी TDS काटता है GST में? बैंक TDS बैंक कैसे काटेगा सर? वो तो TDS जो आपका होता है इनकम टैक्स के अंदर होता है, लेकिन वो भी बैंक नहीं काटता। GST का भी? GST में बैंक कहाँ से काट सकते हैं? GST में होता है सर सेक्शन 51 में, आप कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट का बिल्डिंग का पुताई करना आपको, कि आपको मानिए कि ढलाई करना है, आप गवर्नमेंट बिल्डिंग मानिए यही बिल्डिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तो गवर्नमेंट को आप कोटेशन देंगे 15 लाख रुपया प्लस GST, तो ये 2.5 लाख रुपया आपका से ज्यादा हो गया, 15 लाख टैक्सेबल वैल्यू का बात कर रहा हूँ, उसमें GST नहीं। तो गवर्नमेंट जब आपको पेमेंट करेगा ये 15 लाख रुपया, तो उसमें वो TDS काटेगा आपका 1% या तो आपका 2% IGST उसमें, तो वो आपका गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है अंडर सेक्शन 51, लेकिन प्राइवेट के लिए तो फर्स्ट अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा कॉम्पोजिट सप्लाई के लिए कुछ ये व्हाटएवर सर्कुलर्स और आए हैं इसमें इंटरप्रिटेशंस के,
अपने को कंपोजिट सप्लाई वी नो कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, राइट? 3 4 5 इंपॉर्टेंट चीज है कंपोजिट सप्लाई का. टैक्सेबल पर्सन कंपोजिट सप्लाई देता है. इट इज अ बंडल ऑफ 2 or more सर्विसेज और गुड्स. नेचुरली बंडल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि आज मैं ये तीनों मिला करके एक बक्सा में बेच रहा हूँ. नो, इट नीड्स टू बी नेचुरली बंडल्ड, मतलब कि कंज्यूमर परसेप्शन ऐसा होना चाहिए, मार्केट प्रैक्टिस होना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स. एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए, जैसे फ्लाइट में जा रहे हैं साथ में केटरिंग हो रहा है, होटल में जा रहे हैं तो अकोमोडेशन प्लस लॉन्ड्री हो रहा है. प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए एंड एंसिलरी सप्लाई शुड बी देयर टू मेक द प्रिंसिपल सप्लाई मोर एंजॉयबल, मोर कन्वीनियंट. यही तो होता है और क्या है. तो ये कंपोजिट सप्लाई है, ये सब जो लिखा हुआ है ये. अब देखिए क्या है पीएलसी, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज. अब ये चीज बताइए, ये ऑफिस सेंट्रली लोकेटेड है, इसके अगेंस्ट में मैं एक 12/7 में ऑफिस देखता हूं, इसको ऑफिस का ज्यादा दाम रहेगा ना. क्यों? बिकॉज इट इज सेंट्रली लोकेटेड. वैसे ही कोई भी बिल्डिंग में अंडर कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्रियल प्लॉट, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हम पैसा एक्स्ट्रा क्यों देते हैं? रिवर फेसिंग, सी व्यू, लिफ्ट के पास में है, मेरा प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस रहता है. अरे रहता है उसमें, और वो अलग से कोई बिल में डाल करके नहीं देता. इट इज कंस्ट्रक्शन का कंपोजिट है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है. अब इसमें इन लोग क्या बोल रहे थे, सब मान रहे थे जो अपने डिस्कस कर रहे हैं, सर जैसे बोले कंपोजिट है. ये एआर वेस्ट बंगाल ये केस में बोलता है कंपोजिट है. आपका कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइमरी है, ये प्रिंसिपल, और पीएलसी, पार्किंग का एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसे मिला के कंपोजिट है. ये सिर्फ नहीं बोले, उसके बाद में एक और एआर बोले कि है, लेकिन ट्रिपल एआर जब वेस्ट बंगाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब इसको कंटेस्ट किए तो ट्रिपल एआर मतलब अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग इसको रिवर्स कर दिया. ये बोले कि लैंड से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका, ये तो अलग सर्विस 18% लो इससे. ये बोलता है नहीं सर, ये तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन मेन सर्विस है. कंस्ट्रक्शन का अपना 1/3 बात दे करके, अबेटमेंट दे करके क्या आता है, 1.5% 1% बन जाता है, 7.5% 5% बन जाता है, और 18% 12% बन जाता है. तो हम 18% का पीएलसी बोल करके अलग इनवॉइस का इतना देते तो मेरे पास पैसा क्या बचेगा. तो आप इसको कंपोजिट सप्लाई मानिए, और कंपोजिट ही होना चाहिए. ये बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं. तो इसको क्लैरिटी के लिए बोले कि सर ये कंपोजिट आपका कंपोजिट मानेंगे ये वाला. इसका सर्कुलर अभी तक आया नहीं है, बट ये बोलेंगे पीएलसी कुछ भी नाम बोल करके कंपोजिट मानेंगे. और 1% 5% 12% का बेनिफिट मिलेगा. 18% में अलग से पीएलसी चार्ज नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन सर्विस के साथ होगा. सर जीटीए, ये तो बहुत बार ऐसा होता था सर, 2017-18 में देखते थे, एक तो जीटीए का इनवॉइस आया, 5% का पेमेंट कर दिया, साथ में एक अलग से इनवॉइस दिया है लोडिंग अनलोडिंग का, जो कैश में पेमेंट करके हम लोग खर्चा मार देते थे. वो सब इनवॉइसेस जो है वो खोज के ले आइए, क्योंकि आरसीएम लग गया उसके ऊपर. इसका बात समझिए मैं जो बोल रहा हूं. दिस हैज एन इम्प्लीकेशन ऑन अस, नॉट जस्ट द जीटीए इंडस्ट्री. व्हाट आर दे सेइंग? दे सेइंग दैट इन द मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोई भी जीटीए जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, नॉट अ नॉन जीटीए, जीटीओ का बात नहीं कर रहा हूं, गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट जीटीए. जीटीए मतलब जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है. जीटीओ है वो एग्जेम्प्ट है रोड ट्रांसपोर्टेशन का. एंट्री नंबर 18 अपना जो मास्टर्स 12/2017 है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन. इसमें क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं जीटीए आपके ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान टेम्पोरेरी वेयर हाउसिंग करता है, ट्रांसशिपमेंट एक ट्रक से दूसरे ट्रक में डालता है, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग अनेक काम करता है मुठिया मजदूर वहां पर. तो उसके लिए भी अलग से जो इनवॉइस जो चार्ज करती है जीटीए, या तो सेम इनवॉइस में चार्ज करती है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कंपोजिट सप्लाई. 5% आरसीएम आपको पेमेंट करना पड़ेगा. अगला क्या पहले करता था, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का 5% का इनवॉइस देता था, अलग से आपको एक इनवॉइस कच्चा इनवॉइस देता था कि अलग से इनवॉइस देता था. आप देखते कोई टैक्स नहीं है उसमें, क्योंकि अगला तो जीटीए रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में, वो तो सिर्फ आरसीएम चूज करके अपना करता है. और आप देखते हैं अच्छा कोई जीएसटी है नहीं, मेरे लिए तो कुछ है नहीं, हम पेमेंट कर देते हैं. सर वो सब खोज के हो सकता है निकाल ली है. क्या निकालेंगे? बोलेंगे 17 दिस अ क्लैरिफिकेशन. ये तो प्रोस्पेक्टिव, इसका तो अभी वो भी नहीं आया है सर्कुलर. So it is a clarification. They can say that 17, 18, 18, 19, 19, 20 any services for which you had made the payment in the course of transportation by a GTA, that will form a part of the composite supply and you have to pay. Who has received, you have to pay RCM. उसका इनपुट ले पाएंगे अभी? अगर रजिस्टर्ड पार्टी तो ले पाएंगे, मुश्किल है. अनरजिस्टर्ड जीटीए है तो आज सेल्फ इनवॉइस इशू करके वी कैन स्टिल टेक, वो भी अपने डिस्कस करेंगे, उसका भी राहत मिला है अपने को बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट टू टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सबसेक्शन 3. वो क्या बोलता है? सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि आप जिस दिन आप सेल्फ इनवॉइस क्रिएट करें फॉर एनी सप्लाई टेकन फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब जीटीए, लॉयर, कोई भी अनरजिस्टर्ड आदमी, और 9(3) या सर्कुलर जो आपका 11/2024 जो भी है उसमें वो मेंशन हुआ तो मतलब आरसीएम आपको पेमेंट करना है, लेकिन अगला अनरजिस्टर्ड एडवोकेट है या तो जीटीए,
तो आपको पेमेंट करना है, उसमें आप पेमेंट उस टाइम में नहीं किए, मानिए फॉर एग्जांपल आज नोटिस आता है कि सर आप तो पेमेंट ही नहीं किए, तो आज आप पेमेंट करते हो तो इनपुट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? बोलते हैं अभी इनपुट मिलेगा आपको, क्योंकि सेल्फ इनवॉइस एक होता है, जैसे कि आपका सेक्शन रूल 36 है, रूल 31 है, सेक्शन 56 है, ये सब उसमें सेक्शन आपका जो है सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ, उसमें क्या बोलते हैं टैक्स इनवॉइस का परिभाषा है। वो टैक्स इनवॉइस का परिभाषा में क्लॉज एफ में मेंशन किया हुआ है कि सेल्फ इनवॉइस भी एक टैक्स इनवॉइस होता है, उसके बेसिस पे आप इनपुट ले सकते हैं। सेल्फ इनवॉइस क्या होता है? अपने लेटर हेड में आप उसमें मेंशन करेंगे कि हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसका टाइम लिमिट अभी तक मेंशन नहीं किया। सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ में आप परिभाषा देखेंगे, अमेंडमेंट हुआ है इन द प्रिस्क्राइब टाइम, मतलब कि 30 दिन भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 30 साल भी हो सकता है। अभी बोलने का मतलब क्या है, मेरे को पेमेंट करना था 19-20 में, जीटीए सर्विस से मैं सर्विस लिया, अनरजिस्टर्ड पार्टी, पेमेंट नहीं किया, आरसीएम पेमेंट नहीं किया। आज 4 साल बाद में आके 1920 का 30 अगस्त लास्ट डेट है, 15 अगस्त को मेरे पास में नोटिस आता है। नोटिस क्या आता है कि सर आप जीटीए का आरसीएम का पेमेंट करिए टैक्स का। ठीक है सर, मैं पेमेंट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गिव मी द क्रेडिट, आई कैन इशू द सेल्फ इनवॉइस इन माय नेम इन माय लेटर एट टुडे इन 2024-25 एंड आई कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्यों? बिकॉज सेल्फ इनवॉइस इनवॉइस बन जाता है। इनवॉइस कब इशू की है? 24-25 में, और कोई भी इनवॉइस है डेबिट नोट 24-25 का है, तो लास्ट डेट कब है क्लेम करने का इनपुट पे? फॉर 24-25 30th of November 2025। तो जादू हो गया। 5 साल पहले का टैक्स पेमेंट था, ना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, अभी टैक्स पेमेंट कर दीजिए, इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं करना है और कुछ भी आपको नहीं करना, इनपुट भी मिल जाएगा। बट इट इज ओनली टिल द टाइम सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ फर्दर अमेंड होकर के टाइम लिमिट नहीं मेंशन हो जाता उसमें। अभी टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 वो आपका अमेंड हुआ है, उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है। वो अमेंड क्या हुआ है? वो बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एनी सर्विस व्हिच इज टेकन फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पार्टी इज द डेट यू इशू द सेल्फ इनवॉइस। तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हुआ? जब मेरे को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ इसमें सर बट एक्सपेंसेस तो आपका 5 साल पहले बुक्स में डेबिट कर दिया गया था, तो द ऑफिसर आल्सो हैज अ व्यू कि ना आपने तो बुक्स में डेबिट उसी साल कर दिया, मींस यू शुड हैव इशूड द सेल्फ इनवॉइस एट दैट टाइम ओनली। मैं दिखाता हूँ, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट व्हिच यू रेज्ड। आपका काफी राहत होएगा इसमें से इंडस्ट्री को। ये देखिए सर, ये वाला पॉइंट वो बात कर रहे हैं, ये देखिए सर, ये देखिए कहां अमेंडमेंट हुआ है। टेक्निकल चीज बता रहा हूं। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये क्या टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस कब है? द डेट ऑफ इशू ऑफ द इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट इन केस वेयर इनवॉइसेस आर इशूड बाय द रेसिपिएंट। मतलब क्या हुआ? द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम व्हेन यू टेक इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, द टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जिस डेट पेमेंट करना है। टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट का बताता है, प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है क्या पेमेंट करना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। टाइम ऑफ सप्लाई बता रहा है। ये बोलता है कि द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट। कौन सा इनवॉइस का बात कर रहे हैं? रेसिपिएंट इनवॉइस कैसे इशू कर सकता है? हम सर्विस ले रहे हैं, हम ही इनवॉइस इशू कर लेंगे, वो तो सप्लायर करता है नहीं। लेकिन ये विचित्र केस है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, वो तो इशू ही नहीं कर सकता जीएसटी में, तो मेरे को सेल्फ इनवॉइस इशू करना है। तो सेल्फ इनवॉइस जिस दिन मैं इशू किया उसी दिन मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, ये देखिए आप ये मानते हैं ये वाला अमेंडमेंट हुआ है, ये अभी बजट में अमेंडमेंट हुआ है। डेट ऑफ, ये बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई इन आरसीएम केसेस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट, मतलब सेल्फ इनवॉइस जिस दिन इशू किए उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब पेमेंट उस दिन से होएगा। ये सेक्शन 33 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ है। ये देखिए ये कब इशू करना है? विद इन द पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यही तो बोनस है अपने लिए। ये वही बोल रहा है डेट ऑफ पेमेंट। अगर पेमेंट कर दी है उस टाइम में तब प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पेमेंट नहीं किया, मैं वही तो बार बार बोल रहा हूँ, पेमेंट नहीं किया, छूट गया, पेमेंट नहीं किया, पार्टी का पेमेंट थोड़ी, पार्टी को नहीं सर, ये पार्टी का पेमेंट का बात कर रहे हैं। अभी भी अर्लियर ऑफ 3 है, अभी भी अर्लियर ऑफ 3, इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ, अमेंडमेंट इसमें हुआ। डेट ऑफ पेमेंट अगर आपने पेमेंट कर दिया पार्टी को उस टाइम में, तो आपका अर्लियर ऑफ ये डेट ऑफ पेमेंट में फंस जाएगा, मतलब इंटरेस्ट लग जाएगा आपका। लेकिन तभी भी आप इनपुट क्लेम कर पाएंगे। सर का बहुत और टेक्निकल पॉइंट है। सर बोले कि आप इंटरेस्ट नहीं बचा पाएंगे सर, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई आपका हो गया 5 साल पहले का, तो 18% इंटू 5 80% का तो इंटरेस्ट लग जाएगा, लेकिन लगेगा। लेकिन मैं इनपुट कैसे क्लेम कर पाऊंगा? ये सब भूल जाइए। इनपुट कैसे क्लेम कर पाऊंगा? ये धारा की वजह से सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज है। ये क्या बोलता है? अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम 3 और 4 of 9 विद इन द पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी तक कुछ पीरियड ही नहीं है, 5 साल, 10 साल, 50 साल,
may issue an invoice in respect of the goods or service or both received by him from the supplier who is not registered. एडवोकेट जीटीए से मैं आज इशू करता हूं 5 साल बाद में, तो वो इनवॉइस क्या हो जाता है, नेचर ऑफ टैक्स इनवॉइस. और टैक्स इनवॉइस अगर इशू हुआ है 24-25 का, तो लास्ट डेट कब है क्लेम करने के लिए? 30 नवंबर 25. तो आज अगर मैं पेमेंट करता हूं अनरजिस्टर्ड पार्टी को, टैक्स पेमेंट करूंगा, इनपुट अभी भी क्लेम कर सकता हूं, लेकिन इंटरेस्ट लग जाएगा अगर पेमेंट पहले हो गया तो. और पेनल्टी भी लग सकता है सर. ये देखिए पेनल्टी अंडर 122(3)(e). नवीन जी अभी क्या बोले कि सर बुक्स में हम कलेक्ट कर दिए थे, लेकिन हम उसको नहीं किए, तो उसमें ये भी आपका 122(3)(e) में बोलता है कि बुक्स में कुछ भी अगर प्रॉब्लम की है, एंट्री ठीक से नहीं की है, रिकॉर्ड ठीक से नहीं किए, सप्रेस किए, तो आपका डिस्क्रिशनरी पेनल्टी जैसे रहता है 125 वाला, वो आपका लग सकता है. ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? बेनिफिट इंटरेस्ट का भी बचा सकते हैं अगर वो भी पेमेंट नहीं किया, सप्लाई का भी पेमेंट नहीं किया. नहीं तो नहीं बचेगा. नहीं तो इंटरेस्ट लग जाएगा, लेकिन इनपुट मिल जाएगा. इनपुट तो कोई भी स्थिति में मिलेगा. तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई का मैं आपको, ये कॉम्पोजिट सप्लाई का बता रहा था. अब वैसे ही कॉम्पोजिट सप्लाई का दूसरा जीटीए वाला बता दिया मैं. तीसरा इलेक्ट्रिसिटी वाला. सर इलेक्ट्रिसिटी भी एग्जेम्प्ट है. इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करती है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी एग्जेम्प्ट है सर्विस. तो साथ में जो एप्लीकेशन फी लेते हैं, रेंटल फी लेते हैं, लाइन चेंज करना लेबर फी लेते हैं, डुप्लीकेट फी लेते हैं, कुछ भी चीज फी लेते हैं, उसका अलग से इनवॉइसेस चार्ज हो रहा था. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पहले से हो रहा था. ये सर्कुलर 34(8) बोल रहा था, ये लिखा हुआ है प्रोवाइडेड बाय डिस्काउंट टू कंज्यूमर टैक्सेबल. ये सब सबको एग्जेम्प्ट कर दिया. ये आपका पहले का सर्कुलर है सर 2018 का, इसको रेसेंट कर दिया ये आने के बाद में. ये क्या बोला है? कॉम्पोजिट सप्लाई. मेन सप्लाई क्या है? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसके साथ में 10 चीज और जोड़ दीजिए. मेन सप्लाई का कैरेक्टर सब ले लेते हैं, तो मेन सप्लाई का रेट क्या है? एग्जेम्प्ट है, 0 है. तो बाकी सब भी 0. तो ट्रांसफॉर्मर लगे उससे पैसा भी नहीं लगेगा? नहीं सर नहीं लगेगा. ये देखिए ना क्या क्या चीज छोड़ी है. एप्लीकेशन फी फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, रेंटल फी फॉर आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर, टेस्टिंग फी फॉर ट्रांसपोर्ट, कुछ भी आपका रिलेटेड टू दिस, ये आपका कॉम्पोजिट सप्लाई. लेकिन इसका क्या कंडीशन होता है? आपको सेम इनवॉइस में आपको मेंशन करना पड़ेगा. उसमें अलग इनवॉइस में 2 साल बाद में मेंशन करेंगे, बोलेंगे कि नहीं. कॉम्पोजिट सप्लाई का परिभाषा क्या है? दी एंसिलरी सप्लाईज आर प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली और एट अबाउट द सेम टाइम एज द प्रिंसिपल सप्लाई. तो फर्स्ट कनेक्शन के टाइम में मिलेगा, बाद में ट्रांसफॉर्मर चेंज होगा तो नहीं मिलेगा? नहीं सर, ट्रांसफॉर्मर अगर आप अप्लाई, आप अगर ये सब अगर अलग इनवॉइस में आता है, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है? सर्विसेज शैल बी चार्ज्ड इन सेम इनवॉइस प्रीफरेबली और लिंक टू द मेन इनवॉइस. लेकिन 2 साल बाद में अगर आप करेंगे तो अलग कॉम्पोजिट सप्लाई का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं सर? सही बोल रहे हैं एकदम सही, वो सही है एकदम. अच्छा, डेमो व्हीकल जो है, डेमो व्हीकल के लिए इन लोग क्लैरिफिकेशन दिए है. कोई भी डीलर है तो उसको एक डेमो व्हीकल तो रखना ही पड़ता है ना. डेमो व्हीकल क्यों रखते हैं? जिससे कि हम दिखा सके, समझा सके, टच ड्राइव दे सके, तभी तो अगला समझेगा. नहीं तो ऐसे थोड़ी सिर्फ खरीद लेगा. अटैचमेंट लिखते हैं हम लोग उसमें. तो उस एग्जैक्टली तो सर बोल रहे हैं कि उसको तो खरीदना पड़ता है डीलर को, और हम लोग कैपिटल एसेट दिखाते हैं उसको. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल एसेट आप दिखाइए और 2 साल बाद में बेच देते हैं. मेरा पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें फील्ड ऑफिसर जो बोलने लगे नहीं, ये तो आपका मोटर व्हीकल सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए, मोटर व्हीकल आपका क्या है? 13 पैसेंजर इंक्लूडिंग ड्राइवर के नीचे का है. होंडा सिटी बेच रहे हैं, कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको. अब इसमें इन लोग क्या बोलिए, बहुत अच्छा मतलब कि इनका पॉइंट है. ये देखिए इनका पॉइंट क्या है, ये देखिए इनका पॉइंट ये है कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का क्लॉज ए वो बोलता है क्या? वी विल नॉट गिव यू इनपुट इन केस इट इज पर्टेनिंग टू अ मोटर व्हीकल व्हिच हैज अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 13 पीपल इंक्लूडिंग ड्राइवर, बट देयर आर एक्सक्लूजन्स ए बी सी. मतलब कि सब क्लॉज ए का बात कर रहा हूं. 17(5) क्लॉज ए तो बंदिश करता है, उसके बाद में सब क्लॉज ए आपका छूट देता है एक्सक्लूजन ऑफ ब्लॉक क्रेडिट. पहला क्या बोलते हैं? if such vehicle is used in further supply. दूसरा बोलते हैं कि आपका अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप सेम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तीसरा फॉर ट्रेनिंग, ऐसे करके. तो पहला वाला इन लोग पकड़े है. पहला वाला इन लोग क्या पकड़े है? ये देखिए द यूजेज ऑफ द वर्ड सच मोटर व्हीकल इंस्टेड ऑफ सेड मोटर व्हीकल. इसका मतलब क्या हुआ? डेमो व्हीकल का सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए सब क्लॉज ए जो बंदिश छोड़ता है, वो ये बोलता है कि जो व्हीकल आप खरीदे हैं वही व्हीकल आपको नहीं, मतलब कि फर्दर सप्लाई के लिए बेचना है. अगर आप वो बेचे
तो आपको तो मिल जाएगा छूट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे क्या आप तो डीलर है, खरीद रही है, मैन्युफैक्चरर से बेच रही है, तो उसमें तो आपको इंपोर्ट मिलेगा ही। लेकिन डेमो व्हीकल तो आप बेचते नहीं है ना। लेकिन तभी भी परिभाषा बोलता है कि सच व्हीकल इफ इट इज यूज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल, मतलब कि जरूरी नहीं है कि जो यूनिट सेम 1-to-1 कोरिलेशन हो, मेरे पास जो आ रहा है वही बेचे, नहीं। लेकिन डेमो व्हीकल ऑल्सो तो आई एम यूजिंग फॉर फर्दर सप्लाई, अरे उसको तो यूज करके ही तो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, तो इट इज यूज्ड, सेड व्हीकल इज यूज्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल। थोड़ा सा ब्रॉड डेफिनेशन सोचिए इसका। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें सच व्हीकल नहीं बोला कि खरीद के बेचना है, एग्जैक्टली सेड व्हीकल बोला फॉर फर्दर सप्लाई। तो ये बोलते हैं कि डेमो व्हीकल भी आपका फॉर फर्दर सप्लाई के लिए यूज करते हैं। कहीं पे भी परिभाषा में सब क्लॉज ए में नहीं लिखा है सेड व्हीकल हैज टू बी सोल्ड फॉर फर्दर सप्लाई, वो लिखा हुआ है सच व्हीकल हैज टू बी यूज्ड फॉर फर्दर सप्लाई। तो सच व्हीकल, हर व्हीकल, सिर्फ वो एक व्हीकल नहीं जो खरीदे, हर व्हीकल मेरे को कोई भी तरीके से हम उसको सर बोले जैसे प्रमोशन करते हैं जो भी चीज है, तो आपको मिल जाएगा उसको। तो अभी इनपुट मिल रहा है इस पर। अच्छा, कमर्शियल प्रॉपर्टी अंडर आरसीएम, ये क्या था सर? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी था क्या पहले? यस, यस था, जुलाई 2022 से स्टार्ट हो गया था ना सर। उसमें क्या था? एनी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इन द नेचर ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इफ इट इज सप्लाइड बाय एनी पर्सन, रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, डज नॉट मैटर, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, दैट रजिस्टर्ड पर्सन विल हैव टू पे आरसीएम। बोलने का मतलब क्या है सर? मैं कंपनी हूं, गेस्ट हाउस लिया हूं, रेसिडेंशियल का बात कर रहा हूं, कमर्शियल का बात नहीं कर रहा, गेस्ट हाउस लिया हूं, मतलब कि मजदूर लोगों को रुकाने के लिए एक तो चौल लिया हूं, जो भी है, बट इन दी नेचर ऑफ अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। ये नहीं कि इसको मैं रेसिडेंस बना लिया, तो केएमसी में रेसिडेंशियल है कि कमर्शियल है? कमर्शियल है ये, तो ये तो कमर्शियल ड्वेलिंग हो गया। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब क्या हुआ? सीए डॉक्टर लोग घर से काम करते हैं, वो कमर्शियल ड्वेलिंग है कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, घर से काम करते हैं, मतलब कि केएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो टैक्स पेमेंट करते हैं, पर रेट का जो आपका रेंटल आता है, वो सब रेसिडेंशियल के हिसाब से है। तो एनी सप्लाई ऑफ रेंटल ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब घर का आपका उसका ड्वेलिंग होना चाहिए, केएमसी में घर के हिसाब से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इफ गिवन फॉर सप्लाई रेंटिंग टू बाय एनी पर्सन, कोई भी आदमी दे, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये क्या कर दिए? अब ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में ले आए। कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या लाए? कोई भी अनरजिस्टर्ड आदमी, जैसे कि ये आपका पुश्तैनी बिल्डिंग है किसी का, उसका और कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ रेंटल का है, मानिए 20 लाख के नीचे का है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं, अनरजिस्टर्ड है, कमाता है, खाता है, सोता है, लेकिन आप रजिस्टर्ड हो सर, बिकॉज अपने एसीए रजिस्टर्ड है। तो ये कमर्शियल ड्वेलिंग है, वी आर टेकिंग इट ऑन लीज एंड रेंटल फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पार्टी, तो उसको भी रेवेन्यू लीकेज नहीं करना चाहते हैं। ये क्या बोलते हैं कि आप एसीए रजिस्टर्ड हो तो आप आरसीएम पेमेंट करो। ये जो आपका लैंडलॉर्ड है, ये टेनेंट है, ये दोनों अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी में आता ही नहीं है। ये आपका कौन है? ओनर स्टेटस, ये आपका रजिस्टर्ड है, और ये टेनेंट है एसीए, ये अनरजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड चार्ज में कह रहे थे, नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज जो है लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, नॉर्मल अपना क्या है? फॉरवर्ड चार्ज। अरे भाई वो क्रेडिट लेगा, अपना क्या है उसमें बिजनेस का। अब हो गया ये लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और एसीए रजिस्टर्ड है जो टेनेंट है, तो अब यहाँ पर आरसीएम लगता है। कुछ स्थिति नहीं छोड़ी है, सिर्फ एक को छोड़ के, अनरजिस्टर्ड। अब कॉम्पोजिशन सप्लाई भी आप बोलेंगे सर तो उन लोग इनपुट कहां से क्लेम करेगा? नहीं कर पाएगा इनपुट क्लेम, आरसीएम पेमेंट करना पड़ेगा, इनपुट कहां से क्लेम करेगा? इनपुट क्लेम नहीं कर पाएगा, बट इज रजिस्टर्ड। इसमें अमाउंट का कुछ भी नहीं सर रेंटल प्रॉपर्टी का तो आपका आरसीएम 18% ही होता है। नहीं, रेंट कितना मिलता है? ना 500 रुपए मिलेगा, वो अभी तक वो मेंशन नहीं किया है, लेकिन सर का बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे कि अभी रिसेंटली अकोमोडेशन सर्विसेज पे आया था सर, 20,000 रुपया से ऊपर का अगर हॉस्टल फीस रूम का, कि कोई भी पीजी का फीस, कि कोई भी अकोमोडेशन सर्विस का अगर 20,000 के ऊपर का मंथली रहता है, जैसे सर बोलेगा थ्रेशोल्ड तो बताइए, तो क्या है ये 10-15 रुपया खोली का भी चार्ज लेंगे क्या? तो उसमें दिया था सर 20,000 रुपया का अगर अकोमोडेशन सर्विस देते हैं तो उसके ऊपर में जीएसटी आपको लगेगा आपका। कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी, मानिए मेरा धंधा है पीजी का, यहाँ पर ही गिरीश पार्क में इतने सारे पीजीज है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था सर, बाहर से स्टूडेंट्स लोग आते हैं, उनके पास वो ताए नहीं है कि जो भी चीज है, वर्कर लोग है एक्सेट्रा, उसके ऊपर में बोलते हैं कि सर जीएसटी चार्ज करिए। तो उसमें क्या कर दिया अकोमोडेशन फीस की, एक आदमी से एक महीना में 20,000 रुपया से ऊपर का अगर हम अकोमोडेशन फीस ले रहे हैं, तब जीएसटी अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तब चार्ज करूं, मैं भी अनरजिस्टर्ड हूं, सामने वाले भी, तो कितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 लाख तक उसके ऊपर में तो कंपल्सरी लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है सर, यहां पर है आप अनरजिस्टर्ड हो,
अब आपको भी सोचना पड़ेगा सर, आप अनरजिस्टर्ड हो तो रजिस्टर्ड आदमी जो आदमी है उसको आरसीएम पेमेंट करना पड़ेगा, और आप 20 लाख के ऊपर में तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा उसमें। सर आरसीएम आईटीसी स्टेटमेंट, ये बहुत परेशान वाला चीज है सर। ये अगस्त में आया था, ये पिछला अगस्त में किसी को ध्यान है? आईटीसी रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट आज तक किसी को समझ में नहीं आया। ये वैसा ही है सर, बहुत इजी है। ये क्या है? सिंपल है। देखिए ये ओपनिंग बैलेंस आपको देना है, कब तक देना है ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस बाद में आते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं। सर ये कौन सा महीना का है? अगस्त। अगस्त से स्टार्ट हो गया। क्या है? क्या स्टार्ट हुआ है सर? क्या स्टार्ट हुआ? स्क्रूटनी का, कैन एनीवन टेल मी वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ स्क्रूटनी? टेबल 3.1D में आरसीएम का 100 रुपया पेमेंट किया, आरसीएम का कैश में पॉकेट से। अभी आरसीएम ही बात हो रहा था ना, 100 रुपया क्लेम कर लिए, 10,000 रुपया गवर्नमेंट से 9,900 रुपया गवर्नमेंट का मार लिए, तो नोटिस तो आएगा ही। इफ द टैक्स अमाउंट पेड इन टेबल 3.1D इन जीएसटीआर 3B is lower than the amount claimed in table 4A2 for import of services के ऊपर में जो आरसीएम पेमेंट करते हो, 4A3 मतलब डोमेस्टिक आरसीएम, तो 3.1D वर्सेस हमेशा ग्रेटर होना चाहिए टेबल 4A2 प्लस 4A3 में इनपुट क्लेम किए। वही तो बोलता है, वही तो बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? ये क्या है? 3.1D में इतना टैक्स पेमेंट की है, ये आरसीएम में जेब से पेमेंट की है। गवर्नमेंट बोलते है ये अमाउंट से नीचे होना चाहिए सर, आपका ऊपर हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम है, स्क्रूटनी नोटिस आएगा। मतलब क्या हुआ? टैक्स आरसीएम का कितना पेमेंट किए? 172 रुपीज, और मेरा जुर्रत देखिए मैं क्लेम कर दिया 5,500 रुपया, तो नेगेटिव हो गया, 5,400 गवर्नमेंट का खा गया। तो इस पे नोटिस आएगा कि नहीं आएगा? ये तो सिंपल चीज है। नोटिस आते स्क्रूटनी नोटिस, उसमें हमेशा मेंशन रहता है टेबल 3.1D और आरसीएम 4A4, ये वही तो चीज है। 4,400 हम पेमेंट किए 3.1D में, आरसीएम में से क्लेम किए 620, तो क्रेडिट 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 रह गया इन अ वे। क्रेडिट मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई क्रेडिट नहीं है, मतलब खाता में रह गया कि फ्यूचर में आप 3,780 तक क्लेम कर सकते हो। क्लेम तो 1 करोड़ भी कर सकते हैं, अभी कुछ ऐसा लिमिट नहीं किया हुआ, रेट दे देगा, रेट कर देगा। लेकिन इससे ज्यादा अगर क्लेम करेंगे तो क्या होगा सर? नोटिस आ सकता है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस जब तक पॉजिटिव है तब तक एकदम ठीक है, ये जीरो है तब तक ठीक है, नेगेटिव हो गया तब प्रॉब्लम। तो अब ये बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस आप डालिए, ये सब तो ठीक है, ऑटोमेट हम कर दिए आपका सुविधा के लिए। अगस्त 2024 से हर महीना जितना पेमेंट किए, जितना क्लेम किए, उसका एक तो रिलेशन। लेकिन आपको हम एक सहूलियत देना चाहते हैं। सहूलियत क्या है? 2023 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई 2024, मतलब कि 12 महीना 23-24 का, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना 24-25 का, ये 16 महीना लेकर के जितना भी आप 100 रुपया का पेमेंट किए और 95 क्लेम किए, तो 5 रुपया अभी भी आपका क्लेम करना बाकी है। अगर आप ऊपर में डालते नहीं है और आप 5 रुपया क्लेम कर लेते हैं यहाँ पर, और ऊपर में आप डाले नहीं यहाँ पर कि 5 रुपया पेमेंट हुआ है आपका, तो 5 रुपया नेगेटिव आ जाएगा। अरे सर दिस माइनस दिस ही तो हो रहा है, तभी तो हो रहा है। ये ज्यादा होएगा तो नेगेटिव होएगा ना। तो गवर्नमेंट तो सहूलियत दे रही है कि हम रेगुलराइज करना चाहते हैं, हमको ये सब पछड़ा में जाना नहीं है स्क्रूटनी उठनी का, आप खुद संभालिए अपने को। तो अभी तक जितना भी 16 महीना में जितना भी आपने टैक्स पेमेंट किया आरसीएम में, और जितना कम क्लेम किया, कुछ भी कम मतलब कि कोई भी अमाउंट कम हुआ है, मतलब रिलेशन देखना पड़ेगा। जितना पेमेंट किया 100, क्लेम किए सिर्फ 95, 5 रुपीज अभी क्लेम करना बाकी है। कब तक क्लेम कर सकते हैं? 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पर मैं डालूंगा 5 रुपया, काम खत्म। 5 रुपया पेमेंट हुआ, ओपनिंग बैलेंस डाल दूंगा, काम खत्म। यही तो स्टेटमेंट है, और क्या स्टेटमेंट है? ये कब तक करना है? अगले महीने के एंड तक। अमेंड एक बार कुछ भी डाल दीजिए, अमेंड करने के लिए 30 नवंबर तक टाइम है, 3 बार अमेंड कर सकते हैं। Sir, can RCM पर जो matters है can be covered by section 74 notices because RCM। सर बहुत अच्छा पॉइंट है, सर का बहुत अच्छा पॉइंट है। इतना पेचीदार पॉइंट है ना, ये दुख हो जाता है क्लाइंट्स लोग को। सर का पॉइंट है सिक्योरिटी सर्विस था सर, मेरा क्लाइंट एक्चुअल केस बोल रहा हूँ, ईपीसी के क्लाइंट बहुत मतलब 300-400 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन जीएसटी एकदम डब्बा गोल है उन लोग का, हम लोग के क्लाइंट बनने से पहले। सर का क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी सर्विसेज, दे आर अ कंपनी एंड नॉन कॉर्पोरेट प्रोवाइडर, मतलब एलएलपी और कंपनी नहीं हो, इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटर हो, वो सिक्योरिटी सर्विस गार्ड दे रही है। फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो गया आरसीएम उसके ऊपर। अरे हर महीना सिक्योरिटी गार्ड का जो भाड़ा देते हैं उसके ऊपर में आरसीएम पेमेंट करना 18%, ये तो चीज है, और क्या है। अब क्या किए सर, नॉलेज तो उस टाइम आपका बोल रहे 1 जनवरी 2019 का बात कर रहे हैं, मतलब कि 17, 18, 18, 19 के किसी को जीएसटी नहीं पता था उस टाइम में। तो गलती अपना क्लाइंट का सिर्फ नहीं है, गलती है सप्लायर का। सप्लायर एफसीएम में इशू करते जा रहा है, और क्लाइंट है बेचारा वो पेमेंट कर रहा है, एफसीएम में कर रहा है, और गवर्नमेंट के पास पैसा गया है,
अभी 18-19 का 19-20 20-21 का एक साल में ऑडिट हुआ, ऑडिट में तो सर अंदर घुसते हैं, पूरा अंदर घुस करके देखे, अच्छा पीयर बैलेंस शीट में सर बोले यहाँ पर कि आरसीएम रिलेटेड आइटम्स है, जीटीए है, ये सब घुस करके अंदर देखेंगे आरसीएम का है, सिक्योरिटी सर्विसेज पेमेंट। अरे सर हम तो टैक्स दिए उनको, तो गलत है, यू हैव टू मेक पेमेंट अंडर आरसीएम। तो टैक्स जो पेमेंट किए 10-12 लाख रुपया वो तो गया ही, 10-12 लाख रुपया इनपुट अभी आरसीएम में पेमेंट किए, वो भी 74 का नोटिस इशू किए, जो सर का अभी क्वेश्चन था 74 का शोकॉज इशू किए, 10-12 लाख ऐसे तो पेमेंट नहीं करेगा, अगले नहीं हम कंटेस्ट करेंगे, तो शोकॉज नोटिस इशू किए 74 में, रेवेन्यू न्यूट्रल है 74 तो कहां से होएगा, पेमेंट तो चला ही गया गवर्नमेंट के पास में। 74 तो सर हैबिट है जी, ऑडिट में नहीं फाइंड आउट करते तो डिटेक्ट नहीं होता, तो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन है, सप्रेशन है। अब ये सोचिए वो आदमी के ऊपर में क्या बीत रहा है, 12-14 लाख रुपया फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट किया, गवर्नमेंट के पास चला गया, 12-14 लाख प्लस इंटरेस्ट 12-14 लाख प्लस 100% पेनल्टी है 74 में, और 30 दिन में करते हैं तो आपका 25% 50%, तभी भी क्या करेंगे, 10-12 लाख रुपया पेमेंट हुआ है, 30-40 लाख रुपया और उसके ऊपर पेमेंट, और 50 लाख रुपया का पेमेंट हो गया उसका। अब ये सोचिए सर कितना मतलब बेरहमी का चीज है, 74 का केस ही नहीं है, यू हैव टू कंटेस्ट अंडर 75(2). बट सर का पॉइंट है, कैन वी क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट? नो, वी कैन नॉट क्लेम, बिकॉज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 शायद क्लॉज आई है क्या, ऐसे करके लास्ट में है, एनी इनपुट एनी टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74 अंडर सेक्शन 128 अंडर सेक्शन 130, वो 128-130 को कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? क्योंकि अब तो टैक्स ही पेमेंट नहीं होता है, जब जब्त करते हैं 200% पेनल्टी है, तो उसको तो जब टैक्स ही पेमेंट नहीं हो रहा तो इनपुट का बात ही नहीं है, रिडंडेंट सेक्शन हो गया, तो 128-30 हटा ही दिए, सिर्फ बचा हुआ है 74। तो आपका अगर 74 में आ गया, अगर आपको पेमेंट भी करना पड़ जाए टैक्स का कंटेस्ट, आप वॉलंटरी पेमेंट का जो भी चीज उस टाइम करेंगे अंडर 73 सिलेक्ट करके करिए, 73(5), जिसे बाद में कंटेस्ट करेंगे जब आपके पास में 75(2) से वापस 73 में आएगा शोकॉज नोटिस, तो आप बोल सकते हैं सर हम वॉलंटरी पेमेंट 73(5) में किए अंडर प्रोटेस्ट, ये चीज कर सकते हैं इफ यू हैव टू क्लेम इनपुट टैक्स। और ये अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी हो और आप पेमेंट नहीं किए हो, तो सर से जो डिस्कशन हुआ था, यू कैन स्टिल क्लेम दी इनपुट टैक्स फॉर दैट, क्योंकि सेल्फ इन्वॉइस क्रिएट कर सकते हैं। 9610 सर बहुत प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्या हुआ पता है सर, 17-18 में एलयूटी नहीं था उस टाइम, विद पेमेंट और टैक्स सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे, तो विद पेमेंट और टैक्स उस टाइम, लेकिन क्या था कस्टम्स और में एक्साइज और में उस टाइम में हम लोग क्या करते थे, हम लोग माल खरीदते थे बाहर से, और 6x 7x हम लोग बोलते थे सर हम लोग वी आर गोइंग टू मेक दी एक्सपोर्ट, मतलब क्या हुआ 100 रुपया का इंपोर्ट किए, उसके ऊपर में BCD, उसके ऊपर में IGST सेस, BCD हम पेमेंट कर दिए मानिए, लेकिन IGST और सेस पेमेंट नहीं किए, दिस इज अंडर एडवांस ऑथराइजेशन टेकन एनी एग्जेम्पशन बेनिफिट नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन 78 2017 79 टू द EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, पता है कि डोमेस्टिक सेल ही नहीं करेगा, जो माल खरीदता है इंपोर्ट का डोमेस्टिक परचेज भी नहीं करता, वही उठा करके मैन्युफैक्चर करके हम बाहर भेज देते 100%। तो जब 100% एक्सपोर्ट ही करना है, मेरे को जब रिफंड ही मिलेगा तो हम टैक्सेस क्यों पेमेंट करें भाई? तो इसके लिए तो राहत दिया गया कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं अंडर एडवांस ऑथराइजेशन और एज EOU अंडर दीस पर्टिकुलर 78 79 का एग्जेम्पशन, तो आप 18 महीना में उसको यूज करके प्रोडक्ट बना करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इंटरेस्ट के साथ में IGST और सेस इंपोर्ट के ऊपर में पेमेंट करना पड़ेगा। ये सबको पता है अपने को। इसमें एक बंदिश था, बंदिश क्या था, रूल 96 सब रूल 10 ये बोलता था कि ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो और आप इसके बाद में एक्सपोर्ट करने वाले हो, अब इंपोर्ट किया कोई भी टैक्स पेमेंट इंपोर्ट ड्यूटी नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्सपोर्ट 18 महीना में भी आप कर लेते हो, लेकिन आप एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ IGST नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई भी रीजन बता सकता है मेरे को? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेरा जो इंपुट पड़ा हुआ तो डोमेस्टिक इंपुट पड़ा हुआ है, मैं एक्सपोर्ट करूंगा, सिर्फ बाहर का माल का इंपोर्ट ड्यूटी भी पेमेंट नहीं किया, यहाँ का इंपुट जो डोमेस्टिक का है वो भी यूटिलाइज कर लिया विद पेमेंट ऑफ IGST और रिफंड भी ले लिया, तो डोमेस्टिक इंपोर्ट का भी लिक्विडेट कर लिया, बाहर का भी इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट नहीं किया और एक्सपोर्ट कर दिया, तो गलत है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट? अरे डोमेस्टिक इंपोर्ट को कैसे रिफंड ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं ना, ये तो चोरी हो गया इन अ वे। तो उन लोग बोलेंगे नहीं सर आप LUT बॉन्ड में करिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, बहुत आदमी लोग क्या था, 3 इंपोर्ट किए अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, 10 इंपोर्ट किए विद पेमेंट ऑफ IGST, मिला उन लोग करके एक्सपोर्ट किए, ध्यान ही नहीं है कि मेरे को इसको विद IGST पेमेंट करना है क्या नहीं करना है, विद IGST कर दिया, उसमें एडवांस ऑथराइजेशन का इंपोर्ट का बेनिफिट भी है। इतना ट्रैकिंग कौन करेगा? रोज का आता है माल, रोज जाता है, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है। अब उसके अंदर नोटिस आने लग गया, नोटिस क्या आने लग गया, पूरा जो रिफंड लिए हैं
5 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का जो एक्चुअल क्लाइंट्स लोग का है, जो हम लोग देखते हैं, वो बोलते हैं एरोनियस रिफंड, और वो एमनेस्टी स्कीम में भी नहीं आएगा। वी नो 74 केसेस एमनेस्टी स्कीम में नहीं है, एरोनियस रिफंड केसेस एमनेस्टी स्कीम में नहीं है, राइट। तो वो पर्टिकुलर केसेस में अब क्या बोलते हैं, इसमें अपने खत्म करते हैं, 6:45 हो गए, तो ये लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसमें अब क्या बोलते हैं ये कि सर, अब वो बोलते हैं कि पूरा रिफंड आप दीजिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो बोलिए कि सर मार देंगे क्या, रेगुलराइज करिए इसको एज इज वेरियस बेसिस में। रेगुलराइज क्या हो गया, ठीक है, आप अगर इंपोर्ट करते हो उस टाइम में आप आईजीएसटी और सेस पेमेंट नहीं किए हो, आप भूल से 18 महीना के अंदर में आप एक्सपोर्ट कर दिए विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, गलती हुआ आपका, वायलेशन ऑफ रूल 96 सब रूल 10। हम आपको रिफंड नहीं मांगेंगे, जितना रुपया आप लिए हैं रिफंड, 10 करोड़ 20 करोड़, अगर आप आज जा करके जो 5 साल 6 साल पहले इंपोर्ट किए थे उसके प्रति में जो उस टाइम बेनिफिट लिए थे इंपोर्ट ड्यूटी का, इंपोर्ट ड्यूटी मतलब आईजीएसटी एंड सेस, बीसीडी तो पेमेंट कर दिए थे, आईजीएसटी एंड सेस वो आज जा करके पेमेंट कर देते हैं अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो गया सर, 5 साल 18%, 90% हो गया इंटरेस्ट, 60% 90%। कोई भी करेगा ये, कोई नहीं करने वाला। तो क्या बेनिफिट है? फॉर पास्ट केसेस कोई बेनिफिट ही नहीं है, दिस इज फॉर फ्यूचर केसेस। फ्यूचर केसेस में क्या है, सेक्शन रूल 96 सब रूल 10, रूल 86 सब रूल 4B, रूल 89 सब रूल 4A 4B, जो सेम केसेस जो बोलते थे मर्चेंट ट्रेडर है, वो मर्चेंट ट्रेडर है ना, 0.1% में कंसेशनल रेट में खरीदते हैं, ये एडवांस ऑथराइजेशन की हो, तो वो सब क्या है 89 4A 4B में अलग टाइप का एप्लीकेशन करना पड़ता है रिफंड में। RFD 01 में नॉर्मल एक्सपोर्ट का में नहीं कर सकते, एनी अदर कैटेगरी में मंथली करना पड़ता है वो। तो ये सब सेक्शंस हटा रहे हैं सो दैट कि एक तो स्ट्रीमलाइन हो जाए कि हम एडवांस ऑथराइजेशन से हम माल खरीदे, इंपोर्ट का पेमेंट नहीं किए, हम कर सकते हैं सर, विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी कर सकते हैं, विदाउट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सर्कुलर अभी निकालिए, लेकिन कोई बहुत उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। कोई अच्छा सा ये जब ओमिट करेंगे, ये सब सेक्शंस ओमिट करेंगे, तब उसमें अच्छा से समझ में आएगा कि अपने को फर्दर कैसे करना है इसमें। लेकिन आज का केस ये है, फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड, 10 रूल 96 सब रूल 10 जो बंदिश करता है कि आप एडवांस ऑथराइजेशन में इंपोर्ट आप किए, इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट नहीं किए, तो आप विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी रिफंड नहीं ले सकते। वो सब कैंसिल अभी हो जाएगा, जिससे और स्ट्रीमलाइन हो। ये बेसिक चीज स्ट्रीमलाइनिंग की तरफ जा रही है। ये जीएसटी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो 6 साल पहले जो गलती किए थे वो अभी सुधार रही है, लेकिन सुधार करके क्या मतलब है, लॉ में तो है ही नहीं अभी। 2022 में लॉ में हटा दिए, क्या हटा दिए, सेक्शन 38 39 40 41 42 सब तो हटा दिए। मैचिंग कंसेप्ट जो था 1 2 3 किसी को याद है उस टाइम, अभी वो ला रहे हैं। क्या 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 ला रहे हैं, 1 अक्टूबर से क्या होएगा, सितंबर महीना का जो भी आदमी मेरा सप्लायर GSTR 1 फाइल कर रहा है, कब फाइल कर रहा है, 1 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक, वो अपना GSTR 1 खुलता है कब, 6 अक्टूबर को फॉर इंस्टेंस, एक इनवॉइस सेल का अपलोड करता है, GSTN डालता है, मैं रिसिपिएंट हूं जिसको बेचा है, मेरे पास एक IMS इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम बोल करके एक तो आपका सामने में डैशबोर्ड खुल जाएगा, उसमें दिखेगा अच्छा सप्लायर अभी तक 1 फाइल नहीं किया, तभी भी वो अगर अपलोड कर दिया है तो आपके IMS में उसी टाइम 6 तारीख को आ जाएगा। क्या आएगा, एक्सेप्ट, क्या आएगा, ये देखिए सर क्या आएगा, ये सब अभी दे रही है, क्या मतलब है, एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग, मतलब क्या है, कोई भी आदमी जैसे भूल से दूसरा GSTN का मेरे पास आ जाता है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा उसको, मेरा अगर है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मानिए एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मतलब मेरा मतलब क्या हुआ, दिस इज इन अ वे टू बी, ये डायनामिक टू बी हो गया सर। मैं समझाता हूं, थोड़ा सा बिल्ड करता हूं, 2 मिनट और लगेगा। ये टू बी कब से शुरू होता है सर, 14 तारीख से, अगला महीना का सबको पता है। ये कब से शुरू हो रहा है, पहला दिन से, अगला महीना का, और डायनेमिक है ये। आज 10 सप्लायर बैठ करके डाल रही है, कल 20 सप्लायर डालेंगे, जैसे सेव क्लिक कर दिए मेरा IMS में दिख जाएगा, वो सबमिट नहीं किए, सेव किए, GSTR 1 1A IFF कुछ भी, तो मेरे पास में IMS में दिख जाएगा वो। और क्या दिखेगा, ये दिखेगा एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, पेंडिंग करना, उसको मैं क्लिक करूंगा, एक्सेप्ट को क्लिक मतलब उसमें क्लिक किया तो मेरे को ये मिला B2B अमेंडमेंट, डेबिट नोट, ये सब चीज मेरा सप्लायर का आ रहा है, उसको भी क्लिक किया, पूरा आ जाएगा सर, पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ गया, ये तो इनवॉइस लेवल आ गया ना। हाइपरलिंक से क्लिक करता हूं, अंदर कुछ जाएगा, फिल्टर भी है, बोलने का मतलब क्या, बात समझिए। जब तक 14 तारीख हुआ नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है, सर्कुलर 170 पता अपने को क्या है, जो 3B चेंज हुआ था फॉर्मेट एंड ऑल, 14 तारीख को एक तो मेरे पास में 2B तो मेरा जो जनरेट होता है वो जनरेट होएगा,
14 के बाद से लेकर के जब तक 3B में फाइल करता हूं वो 2B के साथ मैं खेल सकता हूं। 14 तारीख के पहले भी IMS में खेल रहा हूं, लेकिन 2B के साथ नहीं खेल रहा हूं ना, 2B तो जनरेट ही नहीं हुआ है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, रिजेक्ट कर रहा हूं, खेल रहा हूं, उसमें कोई मतलब नहीं है। 14 तारीख के बाद में, 14 तारीख में मानिए कि 10 इनवॉइस आया, उसमें से 9 इनवॉइस मेरा एक इनवॉइस नहीं है फॉर इंस्टेंस, तो 2B हो गया 14 तारीख को। 19 तारीख को मैं गया, 19 अक्टूबर का बात कर रहा हूँ, सितंबर का रिटर्न का बात कर रहा हूँ, 3B फाइल करता हूँ 20 अक्टूबर को, 9 को एक्सेप्ट कर दिया या तो कुछ किया ही नहीं, तो डीम्ड एक्सेप्ट हो गया। ये भी रूल है, कुछ नहीं करते हैं सर, किसको इतना नॉलेज क्या पता है, हम खुलते ही नहीं आए में, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डीम्ड एक्सेप्ट हो गया। एक को मैं क्या किया, पेंडिंग। पेंडिंग क्यों किया सर, कोई भी बता सकता है? एग्जैक्टली सर, 30 तारीख का सेल था इनवॉइस सप्लायर का, वो तो अपना डालेगा सितंबर में, माल आया 2 अक्टूबर को, सॉरी 2 अक्टूबर तो छुट्टी है, 3 अक्टूबर को आया, तो माल ही नहीं आया तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी सेटिस्फाई का हुआ, माल ही नहीं आया तो पेंडिंग क्लिक कर दिया। ये तो लॉ है, तो उसको पेंडिंग क्लिक, पेंडिंग से क्या हो गया, IMS दूसरा महीना का IMS में ऑटो पॉपुलेट हो गया। वो महीना का IMS में नॉट हो अपने यस किए, एक्सेप्ट किया तो कुछ किए नहीं है, अब फाइनल 2B बन जाएगा। फाइनल 2B जैसे रिकम्प्यूट 2B का एक टैब आता है, कंप्यूट 2B, ये देखिए, ये देखिए कंप्यूट दिख रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिए, पीछे यही पे नीचे में कंप्यूट 2B का एक तो आएगा। कंप्यूट 2B क्या होएगा, 9 सिलेक्ट कर दिया, हम बोलते सर यही मेरा है, मतलब कि 100 रुपए का इंपुट था, हम सत्यवादी हरिश्चंद्र है, हम बोलते कि एक माल ही नहीं आया, हम तो सिर्फ 90 रुपया लेंगे, तो हम 90 रुपया के लिए एक्सेप्ट कर दिए। कंप्यूट 2B, वो 2B ऑटोमेटिकली कंप्यूट होकर के फाइनल 2B बन गया, वो 2B फाइनल होकर के 3B में ऑटो पॉपुलेट हो गया। 3B में ऑटो पॉपुलेट हो गया तो मैं 2B के साथ में एक बार कंपेयर कर लूंगा मेरा वाला 2B जो कंप्यूट किया, और उसको फाइल कर दूंगा। अब इसमें सर मुद्दा ये तो इजी है, मुद्दा क्या है सर, इसमें मुद्दा क्या है सर, क्रेडिट नोट्स। अभी क्या है, वी आर एट द मर्सी ऑफ हु, आर सप्लायर, बोलते हैं ना नो योर सप्लायर, नो योर सप्लायर। क्यों मर्सी, सप्लायर को पैसा दिए भाग गया, वायलेशन मेरे ऊपर आया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C, सप्लायर ने 2B में अपना 1 में डाला नहीं, 2B में आया नहीं, तो इनपुट ही क्लेम नहीं कर सकते, लैप्स हो गया मेरा, बदमाशी कर दिया वो। वी आर एट द मर्सी ऑफ सप्लायर, ये हो गया उल्टा सर, सप्लायर एट द मर्सी ऑफ अस। कैसे, सप्लायर एट द मर्सी ऑफ अस, ये देखिए सर, ये देखिए सप्लायर क्यों मर्सी में है, ये सप्लायर मर्सी में, सप्लायर एक क्रेडिट 100 रुपए का सेल किया, उसके बाद में अगला महीना क्रेडिट नोट इशू किया 10 रुपया का, क्रेडिट नोट अगला इशू करता तो मतलब क्या हुआ, सेल 10 रुपये से कम कर रहा है और अपना टैक्स एडजस्ट करेगा वो। There is a downward adjustability of his output tax in the next month if he is issuing a credit note by supplier. तो सप्लायर का बेनिफिट है, टैक्स लायबिलिटी कम हो रहा है ना, और मेरे को क्या करना है, मेरा नुकसान है इन द वे कि आई हैव टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके लिए भी एक तो अलग से आया है, वो वी विल नॉट डिस्कस नाउ, अभी टाइम नहीं है, ये वाला चीज देखते हैं। तो इसमें क्या हो गया सर, क्रेडिट नोट मेरे पास में आया, एक्सेप्ट रिजेक्ट की पेंडिंग, पेंडिंग होता नहीं है क्रेडिट नोट के लिए, ये 4 चीज जो अभी मैं, ये देखिए ये सब जो चीज है, ये देखिए ये चीज के लिए पेंडिंग है ही नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा या तो रिजेक्ट। क्या है, ओरिजिनल क्रेडिट नोट, मतलब सप्लायर बोल रहे हैं कि मेरे को अपना सेल कम करना है, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा दे दिया हूं मैं, तो ये महीना आप उसको एक्सेप्ट करिए जिससे कि मैं अपना सेल आउटवर्ड लायबिलिटी को कम कर सकता हूं, 100 को 90 करूंगा और उतना अमाउंट का जो मेरा टैक्स है वो एडजस्ट करूंगा, डाउनवर्ड एडजस्ट, इस महीना कम टैक्स पेमेंट करूंगा, मेरे को बदमाशी चढ़ा है, मैं रिजेक्ट कर देता हूं। तो रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, उसका अगला महीना का 10 रुपया टेबल 3.1A में ऑटोमेटिकली भर जाएगा, वो तो पागल हो जाएगा, फोन करेगा सर आप क्या कर दिए सर ये, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हो, कब तक, जब तक 3B फाइल नहीं करते हो। आप फर्स्ट टाइम रिजेक्ट कर दिए बदमाशी के लिए, वो फोन करके बोला सर प्लीज प्लीज प्लीज, बोले ठीक है 3B अभी तक फाइल नहीं हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर देता हूं। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एनी केस वेयर द सप्लायर्स लायबिलिटी विल इंक्रीज, सॉरी विल डिक्रीज, एनी केस वेयर द सप्लायर्स लायबिलिटी विल डिक्रीज इन द फ्यूचर, गवर्नमेंट का कान खड़ा हो जाता है, बोलते हैं कि सप्लायर का लायबिलिटी कम हो रहा है, मेरे पास टैक्स कम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसकी पेंडिंग ऑप्शन ही नहीं डालते हैं, पहला चीज। दूसरा बोलते हैं कि अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो मेरे हाथ में है गवर्नमेंट के कि अगला महीना में हम लायबिलिटी बढ़ा देंगे। पहला केस, ओरिजिनल क्रेडिट नोट मैं रिजेक्ट कर दिया, अगला महीना लायबिलिटी, ये महीना कम टैक्स पेमेंट किया, अगला महीना बढ़ा देगा उत्तर। अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट क्या है सर, 100 रुपया क्रेडिट नोट था, वो क्या किया, बोला कि नहीं सर 100 रुपया नहीं है, ये तो आपका रेट डिफरेंस बहुत था, क्या आपका परचेज रिटर्न बहुत था, 200 रुपया होना चाहिए,
तो मेरा 200 रुपया से सेल कम होएगा और टैक्स एडजस्ट होएगा। तो मैं अपवर्ड लाइबिलिटी 100 रुपया का और करता हूं, ओरिजिनल क्रेडिट नोट 100 रुपया, अपवर्ड लाइबिलिटी 100 रुपया। अपवर्ड लाइबिलिटी की वजह से भी क्या हो रहा है, वो महीना में सप्लायर का लाइबिलिटी 100 रुपया और कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट का कान खड़ा हो रहा है, बोल रहा है कि अच्छा और तुम एडजस्ट करोगे, कम पेमेंट करोगे मेरे को टैक्स ये इस महीना में। तो अगर वो केस में रेसिपिएंट उसको रिजेक्ट कर देता है तो अगला महीना में वो 100 रुपया आपका बढ़ जाएगा। मतलब अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ एनी क्रेडिट नोट इफ इट इज रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट द नेक्स्ट मंथ द लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर विल इंक्रीज। तो पहला दो केस में क्या समझे अपने, जहां पर सप्लायर कोशिश कर रहा है अपना लाइबिलिटी कम करने का, वहां पर मैं अगर रिजेक्ट कर देता हूं कोई भी कारण से, तो क्रेडिट नोट मिला नहीं है, जैसे सर बोले माल नहीं आए, क्रेडिट नोट नहीं आया, आई एम नॉट रिसीव द फिजिकल क्रेडिट नोट, मेरे को डेबिट नोट ये महीना इशू ही नहीं करना है, आई एम अंडर लॉ, मेरे पास क्रेडिट नोट जिस महीना में आएगा उस महीना में हम अपना कम करेंगे। तो मेरे पास क्रेडिट नोट आया नहीं लेकिन वो चढ़ा दिया, तो आई विल रिजेक्ट इट। ये प्रॉब्लम हो जाएगा सप्लायर के लिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। 20,000, 40,000, 1 करोड़, 1 लाख का क्रेडिट नोट्स इशू करते हैं, रिजेक्ट मार दिया, उसका लाइबिलिटी भर जाएगा, यू हैव टू मेक दैट पेमेंट, ही कांट डू एनीथिंग, नहीं तो नोटिस आ जाएगा उसके पास में। ये सब पर्टिकुलर केसेस है इसमें। सो ये अभी एक्टिव होएगा, वी विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस। तो ये सब पर्टिकुलर देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, बट सिंस ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम we will like to close this. Thank you for your patience. Thank you. Thank you very much. Thank you for the wonderful session. Thank you. कितना एनर्जी सब में सर ने किया है मैंने, वाह वाह, वेरी गुड। Thank you. We will conclude. Thanks for attending this evening. Thank you.